I will always prefer rank above industrial training, first of all. If you are getting a rank along with industrial training, nothing like that. Yeah. That's the best case. Which is what all three of you are going to get, I think. मई 2026 के बाद 2 महीने फ्री पूरा फिर पूरा free. तो दिस गिव्स मी अ गुड आइडिया कि हम लोग करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो लॉन्च किया है वो फिर मंडे टू फ्राइडे कर देंगे, जो अभी 8 से 10 का टाइमिंग हम लोग करते हैं केगर में. Since I'm from Mumbai, I'll take this example कि तुम estimate करो कि एक दिन में या 12 घंटे में कितनी local trains fly करती है. So you have to keep on estimating what happens. Can you estimate that now for us? Estimate the number of local trains in Bombay in a day. I think those skills are rusty for now, but I will definitely be able to. एक हमारा फाइन हुआ था 1 लाख के अराउंड फाइन गया था My सब में God. पूरे फ्लोर पे, क्योंकि फ्लोर पे उन्होंने दे यूज अ फायर हॉर्स, जो हम फायर को एक्सटिंग्विशर जो होता है वो पूरा यूज किया था किसी बर्थडे पे. उन्होंने 12 बजे रात को कैमरा वैमरा सब लगे हुए, सबको पता है कैमरा वैमरा, लेकिन दे जस्ट मेस्ड अप द फ्लोर. वहाँ पे 1 लाख का फाइन हुआ था सबको, 2-3 जनों को रेस्टिकेट भी किया था. हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल वंस अगेन. पता है मैंने बहुत बार वीडियोस में ये बोला है कि आई हैव मेड लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स इन माय सीए जर्नी व्हिच वाज नॉट गोइंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. एंड मैंने ये भी बताया था कि जो एक्सपोजर मिलता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बहुत इमेंस होता है एंड दैट कैन इमेंसली बेनिफिट यू इन योर फ्यूचर करियर. एंड दैट्स व्हाई टुडे आई हैव इनवाइटेड 3 स्पेशल गेस्ट्स हु आर माय जूनियर्स फ्रॉम द सीए बैकग्राउंड एंड हु आर डूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एट कंपनीज लाइक BCG, DBS Bank and Motilal Oswal Private Equity. So thank you so much Ankush, Tanvi and Prasanna for accepting my invitation. बहुत मजा आएगा तुमसे बात करके and it's going to be super fun. Thank you so much, Thank you, Kushal. Kushal. It's our pleasure. Definitely. Perfect guys, thank you so much. So let's start off with a quick round of introduction of the three of you. Yeah. We'll go alphabetically. So Yeah. Ankush, then Prasanna, then Tanvi. Yeah. So hi guys, my name is Ankush Chedimar and I'm currently doing my industrial training at DBS Bank in Mumbai. So my role involves credit analysis of banks, NBFCs and insurance companies. I do have a YouTube channel. ठीक है अगर मैं बोल सकता हूँ तो. Of course. Guys, like, subscribe and share to Ankush Chedimar's YouTube channel. Yeah, so basically I have also got an all India rank in intermediate. Which rank? 5. Wow. And I We also, share the same rank. yeah, definitely. And I'm looking forward to Sharing the same in finals. Yeah. Let's see. Yeah, so I've also got a rank in Foundation 32, and now I hand over the podium to Tanvi. Thank you so much. Hi everyone, I am Tanvi Sanghvi. I am from Mumbai. I am a foundation ranker. I had All India rank 42 and I am an industrial trainee at BCG. So my work is management consulting. To put it simply, management consulting is solving any business problem, may it be, cutting down on costs or increasing revenue or helping companies, launch new products into the market. So yeah, overall liking my entire experience at BCG. Guys, I think just a quick correction here. So मैंने बोला नहीं था starting में, but in your introductions I also want something which is not there in your resume. So अभी जो introductions दे रहे हो तुम लोग बहुत resume oriented introductions है. I want something which is not there in your resume, थोड़ा हटके है and लोगों को तुम्हारी दूसरी side भी दिखानी है. तो वो भी बोलो थोड़ा introduction के बाद. Okay, so do you want to say something? अभी सब लोग एक दूसरे के पास जाएंगे. सोचना पड़ेगा. Yeah. So, all right. So, apart from work, I like to read. I am someone who likes keeping myself fit. I make an effort to, take out time from work and hit the gym whenever possible. And I also run. Oh wow, So, yeah. that's interesting. Prasanna, what do you? Yeah. So hi everyone, I am Prasanna Kumar Surana and I am doing my industrial training from Motilal Oswal Private Equity. Just to give you a very brief intro about my role at Motilal Oswal Private Equity. So we are working in an investment team where we evaluate investment opportunities of investing in private companies in the ticket size of let's say 200 to 500 CR. And it's a fantastic role. I just joined on 1st of November 2023 and it's quite going good. One thing that is not on my CV, I need to think. Give me some time, please. Yeah. Cool guys, I think he's being quite modest here. I know him because he's from my hometown itself, Nasik, and he's all India rank in his CA foundation as well as intermediate,
एंड ही हैज़ बिन लाइक अ prodigy थ्रू आउट हिज करियर. सो आई थिंक वो एक मॉडेस्ट पार्ट है इसका, इसने बताया नहीं इंट्रोडक्शन में. सो दैट्स लाइक समथिंग, एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम हॉस्टल. आई थिंक अंकुश एंड प्रसन्न बोथ आर फ्रॉम RVG एजुकेशनल फाउंडेशन, द सेम हॉस्टल वेयर इवन आई वॉज देयर फ्रॉम 2017 to 2020. उस पर भी बातें करेंगे काफ़ी, तुम्हारे मस्ती के थोड़े चर्चे करेंगे हॉस्टल में. सो गाइज थैंक्स फॉर द क्विक इंट्रोडक्शन. आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज. सो इसमें मेरे को ये जानना है कि नाउ यू गाइज आर डूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, राइट? And you have done your articleship previously. So firstly, let's break it into two parts. Let's talk post your CA intermediate journeys. Articleship से कैसे हुआ? Like what was your work profile in articleship, and then how did you decide to switch to industrial training? So we can talk about your articleship journeys then. Yeah, so basically I did my articleship in KPMG. So my role was statutory audit. So like वहाँ पे ऐसा होता है ना कि it depends on your basically your manager, कि आपका मैनेजर और आपकी जो टीम है वो कैसी है. So my role was in only one company, Thomas Cook India Limited. So वहाँ पे I had to do some areas which are typically given to some staff accountants. So वहाँ पे it was a kind of monotonous which I could feel कि एक ही एरिया मुझे हर क्वार्टर में मुझे दिया जा रहा है, हर ईयर में मुझे वही एरिया दिया जा रहा है. So if you are efficient enough to complete your areas in less time, next quarter you would get more areas. But so that was the case. And फिर उसके लिए workload बहुत बढ़ जाता है because you want to learn new things, लेकिन फिर उसके लिए आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा. So that was kind of a drawback which I could see in Big Four or maybe और ऐसा नहीं था कि it was with me, it was with many other articles as well. और कुछ articles के साथ ऐसा होता था कि they get to work in different clients. तो उनके साथ थोड़ा ये होता था कि maybe manager doesn't like them, या फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए they don't retain them in their clients. So वो थोड़ा सा drawback था जिसकी वजह से मैंने थोड़ा कि सोचा कि I need to shift to industrial So training. at what stage of your articleship tenure you decided कि okay industrial training करना है? कितने महीने हो गए थे? सो हमारा कोविड वाला पीरियड था पूरा, ठीक है. तो 6 महीने आई डिड वर्क फ्रॉम होम. जैसे स्टार्ट किया वैसे ही वर्क फ्रॉम, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है. उनके हमारे जो मैनेजर्स होते थे, जो सीनियर्स होते थे, उनके सर पे बहुत सारा प्रेशर रहता था, तो समझा ही नहीं पाते थे अच्छे से कि भाई कैसे करना है, क्या करना है. उन्होंने दे दिया बस ये करना है. अब नाउ यू गेट टू सम फ्रेंड्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे पूछना है भाई कैसे करते हैं, बता दे कैसे करते हैं. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ लो फेज फॉर मी, जहाँ पे मैनेजर्स भी थोड़ा बहुत शाउट कर रहा है कि भाई कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं करना. सो तब मतलब तब से मेरा ऐसा था कि यार आई वांट टू गो टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. एंड हाँ, तभी उसी टाइम पे नवंबर 20 जैसे मेरा इंटरमीडिएट खत्म हुआ, वैसे ही ये फाइनल का भी हुआ. तो फाइनल में एयर वन आई थी कोमल. सो कोमल मैम का मैं उनसे मिला था यहीं पे मुंबई में, फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, तो मैं उनसे मिला था. एंड आई वॉज इन ऑ ऑफ हर कैरिज्मा और मे बी द ऑरा, कि उन्होंने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिया था मॉडलिस्ट से. एंड I was kind of attracted to do industrial training from back then. Got it. Fair. And इसमें फिर like KPMG के बाद like you took a switch to industrial training in DBS Bank. Yes. So any specific reason कि okay यहाँ पर ही जाना है, और did you like decide between various companies? So there is a kind of interesting story to it. So मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि अब ठीक है, BCG तब तक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेना शुरू कर चुका था. सो अब मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार मतलब यू हैव अ गुड प्रोफाइल, यू हैव अ गुड जो भी एकेडमिक चाहिए होता है, यू हैव एन एक्स्ट्रा करिकुलर एज वेल, यू हैव यूट्यूब या जो भी है. सो देखो BCG में तो आराम से हो जाएगा, मतलब ठीक है वो होगा इंटरव्यू, लेकिन तेरे को तो लेंगे, तेरे को क्यों नहीं लेंगे. सो आई वाज लाइक हाँ मतलब बात तो सही बोल रही है कि मेरे को तो मेरे को भी लोग सेम ही बोलते थे तेरे को तो ले ही लेंगे. तो और उनकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी थी, प्लस स्टाइपेंड तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा स्टाइपेंड मैंने तब तक सुनी नहीं थी. 1 लाख हमको जैसा अनाउंस किया गया था, 1 लाख स्टाइपेंड हमको अनाउंस की गई 1 लाख पर मंथ. यस. वाओ. एंड वो भी RVG हॉस्टल में. तो मतलब ठीक है हॉस्टल में ही थे ना हम लोग तब तो बहुत ज़्यादा हुआ था इसका कि BCG. सो आई वाज लाइक हाँ मतलब बात तो ठीक है यार, मतलब मेरे को क्यों नहीं लेंगे, ठीक है. तो मतलब फिर मेरा ऐसा था, मैं चिल हो गया कि आएगा BCG आएगा, करेगा अपना इंटरव्यू ले लेगा, चले जाएंगे. मैं 1 लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा. हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा. तो ये मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक भी था क्योंकि मैंने कहीं और अप्लाई ही नहीं किया बेसिकली. तो अब मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मेरा पीरियड जो खत्म होने वाला था वो अक्टूबर में खत्म होने वाला था, मतलब 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 ईयर्स के बाद आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो. तो 1.5 ईयर्स मेरा अक्टूबर में खत्म होने वाला था. और BCG का जो पीरियड था, मतलब जब वो लोग हायरिंग कर रहे थे तो सितंबर था, ठीक है. तो अब मेरे पास वो था कि भाई अगर BCG ने तो कुछ नहीं, मतलब डू और डाई वाला था, क्योंकि उसके बाद अगर बेसिकली कंपनीज प्रेफर कि भाई उनको पूरा 1.5 साल मिले, जो भी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो 1.5 साल आपको उनको पूरा मिले, ताकि वो आपको सिखा सके और वो आपका जो भी आपसे अच्छे से काम करवा सके. सो अब नाउ मैंने सिर्फ ऐसे ही मतलब रैंडमली बिना कुछ सोचे समझे मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए थे. एक मैंने इसमें DBS बैंक में दिया था और एक कहीं और दिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कंपनी का. तो अब ये मतलब ऐसे ही दिए थे मैंने, मतलब मैं ऐसे ही चलो BCG में तो हो ही रहा है, ये भी
दे के देख लेते क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जिसमें मैंने दिया था उसमें मेरा हुआ नहीं था, उसमें क्योंकि मैं प्रिपेयर ही नहीं था बेसिकली, मैंने कुछ नहीं प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, मुझे नहीं आया, ठीक है। और ये DBS बैंक में थोड़ा बहुत मैं प्रिपेयर करके गया था, तो उसमें उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे वो आ गए। एंड देन हैपेंड BCG। तो BCG में ना मेरी ये गलती भी थी कि तब मेरा एडवांस ITT था, MCS था, तो आई काइंड ऑफ फ्लो इन दैट कि भाई चलो भाई घूमने जा रहे हैं, बस मजे कर रहे हैं। मैंने वो 1 महीना भी अपने मेंटर से या फिर जो केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ती है वो भी मैंने अच्छे से नहीं करी थी मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था मैं BCG के लिए। तो फिर जब इंटरव्यू वाला फेज आया तो तब पता चला, मतलब वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन तब पता चला कि BCG में नहीं हो रहा है। So all in all, like you applied to 3 companies in Yeah. total for industrial training. Yes. Got it. Cool. We'll go to Prasanna and Tanvi also. So Yeah. how was your articleship journey and then industrial training? या सो आफ्टर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मेरा ये था, मतलब आई टॉक टू मेनी सीनियर्स एंड आई वॉज वेरी डिटरमाइंड कि मुझे जाना है तो टैक्सेशन में, एंड प्रेफरेबली M&A टैक्स। एंड क्या होता है M&A tax for our audience if you can help them understand? So M&A tax in KPMG it is basically deal advisory, M&A tax and private equity taxation, What's the full form of M&A tax? mergers and acquisition tax. So the kind of work in M&A tax is divided into 2 parts. One is pure M&A tax, that is if 2 companies are merging or there is any scheme of arrangement between them, then you advise them from tax perspective. If what will be the best method to reduce the tax outflow? Right. Can you give an example with like कुछ भी, मतलब एक example के तौर पे समझा सकते हैं? Just like last year Tata Steel का हुआ था group restructuring, हाँ. and there were more than 100 subsidiaries of Tata Steel. Wow. Even in UK and US and मतलब so many countries. So उसमें ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करें कि टैक्स आउटफ्लो मिनिमम हो। सो उसमें ये देखते हैं कि कंपनी को जब प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड के फॉर्म में या बायबैक करके ऊपर रिपैट्रिएट होगा, तो टैक्स आउटफ्लो किस पे कितना लगता है, एंड उसमें कमर्शियल एंगल भी होता है, बट टैक्स इज अ क्रिटिकल पॉइंट। सो उसमें टैक्स एडवाइजर्स आते हैं। सो टैक्स एडवाइजर्स आर बेसिकली नोन एज ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स इन दिस काइंड ऑफ transactions. Why did you always wanted to get into M&A tax? Any specific reason? हाँ, there are some specific reasons. First is about statutory audit. In stat audit बहुत काम होता है, हेक्टिक होता है, ये मैंने सुना था। And so that was one कि stat audit नहीं करना है। And second was stat audit में बहुत लोग जाते हैं। So when there are let's say 400 people in stat audit, there are only 10 people in M&A tax. Because not only at the article level, but even at senior level, manager level, every level. मतलब रिक्वायरमेंट ही कम है। So it's 2.5%, like the ratio is Yes, out of 100 around only 2-3 2-3%. people. Wow. Yes. So वो एक था कि जाएंगे तो थोड़ा यूनिक, प्लस नेम फैंसी था, M&A टैक्स, प्राइवेट इक्विटी टैक्सेशन, डील एडवाइजर, यू आर एडवाइजर्स काइंड ऑफ थिंग, ये एक था। थर्ड पॉइंट वॉज कि मैंने ट्रेंड देखा था कि बहुत सारे रैंकर्स जो थे वो M&A टैक्स में जा रहे थे। लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स के मेजर AR1s फ्रॉम श्रेया टिब्रेवाल, अर्जुन मेहरा, गिरीश असवानी, सब लोग M&A टैक्स में गए थे। सो तब मुझे भी लगा कि कुछ तो इसमें होगा खास, एंड मैंने बात की तो वो बोले कि काम एक्चुअली बहुत अच्छा है। सो डैट वाज माय, मतलब पहले से मेरा था कि M&A टैक्स में जाना है। एंड फॉर्चुनेटली मेरा डिलॉयट का भी हुआ था, M&A टैक्स का एक इंटरव्यू क्लियर हो गया था, सेकंड के लिए मुझे आया, बट तब तक मेरा KPMG फाइनल हो चुका था। सो KPMG Yeah, can you sorry to interrupt, but can you walk us through your interview experience of articleship at Deloitte and KPMG? वो भी Yeah. एक helpful होगा। हाँ. सो KPMG M&A टैक्स के इंटरव्यूज में फर्स्ट इंटरव्यू राउंड वॉज टेक्निकल राउंड, बट इन माई टेक्निकल राउंड सरप्राइजिंगली देर वॉज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन, एक भी नहीं पूछा। मतलब हाँ, इन डिलॉइट राउंड दे आस्क्ड कि सेक्शन 112 है, सो बेसिकली दे विल आस्क यू फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्नड इन इंटरमीडिएट ओनली। एट मैक्स दे कैन आस्क यू समथिंग मोर जो थोड़ा न्यूज़ में चल रहा है एटसेट्रा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड और नॉट, बट नॉट मच कि दे विल एक्सपेक्ट कि यू शुड नो एवरीथिंग इन M&A टैक्स और प्राइवेट इक्विटी टैक्सेशन। So it's basically मतलब theoretical, काफी इंटरमीडिएट में जो भी सिखाया गया है Yes. उस पर से जो सेक्शंस है वो सब पूछे हाँ, जाएंगे। yes, exactly. Okay, got it. And in Deloitte also, same questions like section 112A, capital gains, the most commonly used concepts of taxation that we use in M&A tax, capital gains, other sources, not salary, not house property, not PGBP. So that was it. So KPMG हुआ. Yeah. And again KPMG में like I mentioned there are 2 types. First leg is M&A tax, second is private equity taxation. So my team was majorly involved in private equity taxation. So in private equity taxation, we were transaction advisors to private equity funds. So the biggest global private equity funds. So I was fortunate enough that I worked on some of the good deals last year from KPMG on private equity side. And so what we do, so a private equity firm is investing in a company, a private company or maybe a listed company in India, and then getting it delisted.
So we'll advise the private equity firm on tax matters. First of all, tax structuring. So by which instrument should you invest? Equity or debt or convertible debt, non-convertible debt, preference shares. Secondly, the tax due diligence of the target. So whenever a company or a private equity firm is investing in any other target company, so they typically do so many due diligences like financial due diligence, commercial, legal, tax, ESG. So we were doing tax due diligence just to understand the tax liabilities that may arise in the future. So what exactly you do when you do tax due diligence? So so let's say we have 3 years of period in our scope. So we will check the 3 years return of income, computations, their books, and we will check the tax positions taken by the company on various matters. So if you feel that this position is very litigative and there might be a tax outflow or demand from department in next year or maybe in future, then we will let it know to the private equity firm, and then they will adjust it while negotiating and making the valuation. Got it. But again, tax due diligence findings are very low, so might be just 0.1% of total deal size. But it's a tradition to do tax due diligence. The important point is financial due diligence. Got it. And how is that difference from tax due diligence? उसमें क्या करते हो? So FDD तो मतलब मैंने तो किया नहीं आर्टिकलशिप में, बट FDD मतलब हमारे ऐसे होता था कि अगर कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट कर रही है कोई कंपनी में, तो उसका FDD KPMG कर रहा है एंड टैक्स DD भी ही KPMG की टैक्स टीम कर रही है. सो हमारे मेजर क्लाइंट्स FDD से आते थे. एंड FDD क्या करता है, वो पूरा तुम्हारा फिनेंशियल का एक एक आइटम चेक करेगा. It's like auditing only in that case then? Not auditing, because in auditing you are checking the historic info. In FDD you are majorly focusing on future, because like you are investing in any company. So what you will see the future projections to understand the valuation and what return you can generate. So a company might say कि हमारा इतना revenue होने वाला है, 7% growth, 15% growth होने वाली है. FDD check करेगा कि actual possible है क्या. So even they will check the contracts with customer. So if a company is having customers majorly in B2C industrials, then they will check कि इनके contracts कैसे हैं, इसमें clauses क्या क्या है, ये breach हो सकते हैं क्या. So they will check everything right from the revenue to last even operating expenses. Got it. That is very FDD. detailed and granular. Yes. पूरा FDD process. Yes. Got it. And when did you decide to get into industrial training? At what tenure? हाँ, so मेरा तो ऐसे नहीं था कि मुझे इंडस्ट्रियल करना है, बिकॉज माई वर्क वॉज क्वाइट गुड एट KPMG एंड इवन नॉट मच हेक्टिक एज कम्पेयर टू स्टैट ऑडिट. एट टाइम्स व्हेन डील वॉज लाइव आई माइट बी वर्किंग टिल 3 AM, बट मतलब बहुत रेयरली होता था जब डील एकदम लाइव चल रही तब. सो मेरा नहीं था कि इंडस्ट्रियल करना है. सो सेम मेरा ऐसा था कि BCG, मतलब मेरा ऐसे जस्ट लाइक आर्टिकलशिप, मेरा तब भी फिक्स था कि मुझे M&A टैक्स करना है, तो मैंने वही किया. इंडस्ट्रियल में मेरे 2-3 प्रोफाइल फिक्स थे, इसमें मिला तो ही करूँगा. And that too again after factoring so many factors that we will discuss later, like study leaves and stipend everything. So मैंने 3 प्रोफाइल निकाले थे. एक फर्स्ट वॉज BCG मैनेजमेंट कंसल्टिंग, वन वॉज प्राइवेट इक्विटी मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी, एंड वन वॉज HUL CA इंडस्ट्रियल प्रोग्राम. So HUL just started last year CA industrial program, which is exclusively for CA intermediate rankers, and in which there is a 18 months program, and you will be given 5 stints of 3 months each. And you might need to relocate to another location for 3 months, so at some factory location. So that is purely industry side and supply side role, actual business operations. So मेरा ये 3 फिक्स थे कि इसमें से हुआ then I will think, मतलब again not sure कि करना ही है, I will think ऐसे था, because KPMG was offering me 5 months of study leave, plus my team was saying that we will offer you 15 days additional, you just get the rank at final again. So मुझे यहाँ पे ये benefits बहुत थे. सो आई वॉज जस्ट वेटिंग ईच अदर, मतलब क्या करूँ क्या नहीं. BCG का मेरा हुआ शॉर्ट लिस्टिंग. सो अभी जो BCG का लास्ट राउंड हुआ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, उसमें देर वर 16 पीपल इन इंडिया जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, एंड उसमें से वी वर 6 इन द फाइनल राउंड, थर्ड राउंड. सो उसमें से 5 गॉट सिलेक्टेड, आई डिडंट गेट सिलेक्टेड. Oh no. Yeah. I think I can resonate to this very well. Yeah, मेरे साथ so भी ऐसा ही we हुआ 3 था. share the common. Yeah. Yeah. So that was first. Then simultaneously मेरे मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी के इंटरव्यू हो रहे थे, एंड मतलब मेरा यही था कि एक तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग जो बिजनेस साइड है, या फिर प्राइवेट इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट साइड प्लस बिजनेस साइड दोनों है, मतलब कंसल्टिंग प्लस इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल साइड. थर्ड वॉज HUL बिकॉज इट वॉज क्वाइट गुड एंड द बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग वॉज क्वाइट गुड, बट इट वॉज मेनली सप्लाई साइड और बिजनेस रोल. सो एंड हाँ, HUL का मेरा 3 राउंड हो गए थे, and I got an offer from HUL as well. Oh, okay, got it. But then मतलब मैंने सोचा कि मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट Yeah, इक्विटी yeah. करते हैं,
रीज़न बिंग यहाँ पे फिनेंशियल साइड ज़्यादा था एंड आई विल एक्चुअली लर्न हाउ टू इन्वेस्ट Yeah. for my personal finance as well and in the life as well. So I agree. No, maybe we can discuss towards the later part of the conversation about your interview experience at all these three firms. Yes. And even I think your 3 interview experiences. So we'll go to Tanvi as well. So maybe you can talk about your articleship journey and then how did you switch to industrial training? So I started my articleship in 2021, early 2021. I was in BDO, India LLP, for direct taxation. So my experience in direct taxation was mainly focused on financial services like banks, mutual funds, NBFCs, insurance and reinsurance companies. In that also मेरा experience सिर्फ 3 चीज़ों पे था जो normally direct tax में होता है, that is compliance, advisory and litigation. So it was very comprehensive in that sense that I got to do all 3 of those very properly. And I genuinely liked the work I did. Honestly, a lot of people say that tax gets repetitive. तुम कितने ही return file कर लोगे? After a point, same ही करना है last year का copy paste करना है majorly. But then what I felt was different in my case was that I also went on granular level, looked at the financials, and I analyzed and I really asked myself that okay, this treatment was done last year. Is it really making sense this year? So I tried to do things on my I tried to introspect and think a lot about it and then do it. So there was a lot of learning for me as well. But somewhere I knew that tax is not the ultimate thing in life. I eventually want to do an MBA and get into consulting or maybe marketing or something like that. But then I came across this link on LinkedIn where I could apply to BCG and BCG, McKinsey, Bain, these MBBs are the place you eventually want to get to. And I was like, oh, अगर industrial training level पे यहाँ जाने मिल रहा है तो why not explore it? I think Bain and McKinsey don't come for industrial training, no? Yeah, they don't. But like for every business, Yeah. like business administration graduate, MBA graduate, that is the ultimate place Right. people want to be at. And if at an early stage in life, अगर तुम्हें वहाँ जाने मिल रहा है तो why would you not? So I knew that if industrial training is happening, it is just BCG, or there is no industrial training, I'll be in tax and then eventually go to an MBA. So you didn't want to go for other firms for industrial I training? was, just BCG? Yeah, I was okay. like very clear. If BCG is happening, it's BCG, or else it's just me Got in it. tax and spending my remaining years in video. Got it. In that way. So yeah, that was my entire thought process behind why BCG, my articleship experience also. Got it. And like when you switched towards BCG, so let's talk something about that as well. Can you help us understand BCG में कितने लोग हर साल select होते हैं? How is the entire shortlisting process? कितने लोग shortlist होते हैं? कितने लोग select होते हैं? And इसका frequency क्या होता है? So I am the second batch of industrial trainees. First batch में I'm not sure कितने shortlist हुए थे, but जितने select हुए थे I think वो 7 ही है. Okay. Whereas in my batch 33 shortlists थे पूरे इंडिया से and उसमें से I think 13 to 15 लोग select हुए हैं. Oh, okay. Got it. That's So a big that- number. Yeah, that's honestly I've a big also number. heard, guys, tell me your thoughts as well, कि recently अभी BCG started hiring industrial trainees and then उनको PPOs देते, pre-placement offers. Right. And what has happened is कि CA final का rank आने के बाद now it has become difficult because usually ये industrial trainees को ही convert करके full time roles पे होते हैं. So that is a good way for them also to save costs because like इनका salary is lesser than the like industrial trainees का stipend is lesser than the salary which a CA fresher would get. So is that true? Is that happening in the industry? Even I heard that. Got it. And even the first batch which Tanvi mentioned, having 7 industrial trainees in BCG, a few of them have got PPO. Ah, okay, got Yes. it. And any idea how many PPOs are usually given, like out of these There is 7 no or 30? set percentage or so. I think out of these 7 people, as if I'm not wrong, only 5 of them have gotten a PPO, which is still a good number. Yeah, I yeah, feel. 5 is a good number out of 7. Yeah, exactly. Right. One of them, I think, as far as I know, did not clear. Probably that's Okay. why. Oh, okay. Got it. The PPO is obviously not given, but it is purely performance based. Got it. They have not mandated a rank in CA final as such. Got it. So if your performance has been great and also subject to market conditions now that we hear a lot Got of layoffs and economic slowdown. Right. So- No, in fact, even in my attempt, so not talking about industrial training, but the CA hirings which were there, so there were only 2 people who were selected.
And in that entire attempt itself, usually BCE selects around 7-8 CA freshers or even more. Sometimes they select 11-12 as well. हमारे टाइम सिर्फ 2 किए थे बिकॉज ऑफ द कोविड सिनेरियो विच वॉज देयर. एंड उसके बाद आई रियलाइज्ड कि हाँ मतलब इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट इनटू BCG और एनी अदर कंसल्टिंग फर्म एज वेल. Let's talk about the fact that now you guys switch from articleship to industrial training. This is a common question which even I personally have. How do you guys manage to, let's say, give these interviews? मतलब आप articleship कर रहे हो अभी and then आप switch कर रहे हो from articleship to industrial training. तो कभी होता है यूजुअली एट व्हाट स्टेज, मतलब इफ़ यू कैन जस्ट हेल्प मी विथ योर एंटायर पर्सनल एक्सपीरियंस कि कौन से महीने में तुमने दिया था, फिर कम्युनिकेट कब करते हो तुम लोग तुम्हारे बॉसेस को कि यू आर लीविंग आर्टिकलशिप एंड गोइंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आफ्टर यू गेट द सिलेक्शन और नॉट, एंड ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? बिकॉज आई एम ऑलवेज कन्फ्यूज कि अगर मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है तो मैं कैसे करूँ, लाइक मैं तो बॉस को बता नहीं सकता बिकॉज वो तो मना ही करेंगे. सो हाउ इज़ दिस एंटायर प्रोसेस? या सो इफ़ आई गो फर्स्ट, मेरे इंटरव्यूज, देयर इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी. मैंने 2 इंटरव्यूज तो ऑफिस में से दिए. सो KPMG ऑफिस कैफेटेरिया में बैठ के मैंने 2 इंटरव्यू दिए. यूजुअली सो कैसे होता है ना, यू कैंट अप्लाई फॉर अ लीव इन योर आर्टिकलशिप जस्ट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटरव्यूज. एंड जो पीरियड आता है ये सितंबर के अराउंड, वो पीक पीरियड भी होता है मेजरली, इवन इन ऑडिट एंड इन टैक्सेशन. सो कभी होता है, लाइक कैन यू गिव मी योर एग्जांपल कि इंटरमीडिएट कभी दिया तूने, उसके बाद आर्टिकलशिप कब से शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यूज कौन से मंथ में हुए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्चुअली कभी ज्वाइन हुई? हाँ, सो माई इंटरमीडिएट एग्जाम्स वर इन November 2021. नेक्स्ट ईयर आई ज्वाइन इन April बिकॉज हमारे रिजल्ट लेट आए थे. सो आई ज्वाइन इन द फर्स्ट वीक ऑफ April 2022. So I completed 18 months on 4th October 2023. And at KPMG. हाँ, yes. So industrial training जो 18 months के लिए आती है कंपनीज, मेजरली 18 months के लिए आती है अभी. So वो आती है अराउंड सितंबर. इवन अगस्त से भी आना चालू हो जाती है. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिस 5 months, मेनली अगस्त टू नवंबर. इसमें मेजर इंटरव्यू होते हैं एंड फ्रीज हो जाता है सब कुछ कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. उसके बाद जो 12 months के लिए आती है वो फिर आएगी Jan, Feb, March, April, तब आएगी एंड तब वो फ्रीज हो जाएगा. बट अगेन अगर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर 12 months इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, देन यू विल बी कम्पीटिंग विद पीपल जो नेक्स्ट 6 months जूनियर है एंड वो 18 months के लिए तब अप्लाई करेंगे. करेक्ट. सो उधर वो तब करेक्ट. तो तूने कब तेरा इंटरव्यू दिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का? हाँ, सो BCG इंटरव्यू वॉज ऑन 8 September 2023. यस. एंड मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटीज इंटरव्यू वर मतलब BCG के लास्ट 2 weeks में 2 इंटरव्यू एंड BCG के बाद एक इंटरव्यू लास्ट MD राउंड. एंड HUL के भी सिमिलर लाइन्स. सो हाउ डू यू मैनेज दीज इंटरव्यूज? क्या बोलते हो बॉसेस को वगैरह? नहीं, सो आई ट्राइड कि मेरा इंटरव्यू ऑफिस के टाइमिंग्स के पहले हो. सो 11 से मेरा ऑफिस है तो मैं उसके पहले करूँ. अगर नहीं है सो एक बार मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया एंड मैंने बोला कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर लेट्स से 2 hours इन द आफ्टरनून. तब मैंने वो इंटरव्यू दिया. उसके अलावा जैसे मैंने बोला ऑफिस से 2 इंटरव्यू दे दिए. हाफ आवर के लिए यू कैन गो. मतलब यू आर अ वेरी बिग रिस्क टेकर इट सीम्स. मतलब यू कैन बिकम अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर आई थिंक. नहीं, आई होप. बट बिकॉज आई हैड नो चॉइस. सो ऐसे नहीं था मुझे रिस्क लेनी थी. आई हैड नो चॉइस. मुझे ऑफिस जाना ही था एंड मतलब काम बहुत था एंड इंटरव्यू देना था. सो ऑफिस से दे दिया. मतलब आई यूज टू कैरी अ टाई एंड ऊपर जाकर टाई पहन लूँ, मेरा वेब कैम लेके जाऊँ, लैपटॉप पे कनेक्ट करूँ एंड ऑफिस लैपटॉप से ही इंटरव्यू दे दूँ. सो दैट वाज. एंड जब मेरा फाइनल्स हो गया कि अभी मैं जाना ही है इंडस्ट्रियल के लिए, कभी पता चला ये रिजल्ट कि सिलेक्शन हो गया है? हाँ, सो ऑन 10th of September मेरा 3rd राउंड हुआ था. 11th को आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी कि यू आर सिलेक्टेड. फिर सब मतलब हो गई बात पूरा. एंड देन मैंने मतलब मेरे मैनेजर्स एंड एवरीवन को कन्वे किया आफ्टर 2 weeks. बिकॉज मेरा जॉइनिंग लास्ट वीक ऑफ सितंबर. हाँ, बिकॉज मेरा लास्ट डे था 31st October 2023 एंड 1 month नोटिस पीरियड है KPMG का. सो उसके भी 2 हफ्ते पहले मैंने मेरे टीम को बोल दिया. एंड फॉर्चुनेटली मतलब आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी टीम बहुत सपोर्टिव है मतलब थी. एंड उन्होंने सबने बोला कि इट्स वेरी गुड, यू आर गोइंग टू द फील्ड दैट यू वांट एंड अच्छा है ऐसे वैसे. एंड एवरीवन एडवाइज मी कि तू MBA करना, थिंक ऑफ IIM, नॉट IIM तो हार्वर्ड, वॉटन, लंदन ऐसे करना एंड अच्छा है, बहुत बढ़िया है ऐसे सब. सो राइट फ्रॉम माई डायरेक्टर टू माई मैनेजर, सीनियर्स, एवरीवन वाज क्वाइट सपोर्टिव एंड नॉट लाइक कि तू जा रहा है तो अभी हमें छोड़ के कैसे जा रहा है. करेक्ट. दैट्स वेरी नाइस एंड वेरी हार्ट वार्मिंग टू Right. हियर दैट एज वेल. इसमें एक ये क्वेश्चन था, तो कभी ज्वाइन कब हुआ फिर मोतीलाल ओसवाल? 1st November. 31st October लास्ट डे था. ओके, एंड 1st November आई जॉइन. कितने मंथ का नोटिस यू सेड एट KPMG? 1 month. अच्छा, 1 month का. सो यू कम्युनिकेटेड सितंबर एंड में एंड 1 month नोटिस यू सर्व. यस. एंड देन 1st November से यू जॉइंड मोतीलाल ओसवाल Right. प्राइवेट इक्विटी. हाँ. गॉट इट. एंड अभी योर CA फाइनल अटेम्प्ट इज इन November 24 Got next it. year. Got it. Fair. And then you have to continue the industrial training for the next 12 months, right? नहीं, next 4 months till April 2025.
No, I as in अभी से अभी कितना? से तो- total 18 months. 18 months, my bad. So 18 Yes. months पूरा करना है. And this also includes the leave period which is Yeah. there. So to add to what you said, given the new scheme that has come into force, अब पूरा आर्टिकलशिप 2 ही साल होने वाला है. So 1 year of articleship and 1 year of industrial training. So the people who are enrolled in the new course, तुम्हारे पास एक edge है कि तुम 1 साल आर्टिकलशिप करो, 1 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो एंड तुम्हें 6 months अलग से मिल रहे हैं विच आर सैक्रोसैंक्ट. तुम उसमें पढ़ सकते हो और तुम्हें वापस आके काम भी नहीं करना है. सो दिस इज समथिंग यू मस्ट एक्चुअली कैपिटलाइज ऑन. दे कैन रियली be stress free in their industrial training duration also because there's a lot of work compared to articleship. तो ये एक चीज़ है कि industrial training at least I would recommend it to people to go ahead with. So इसमें one quick question here. So 12 months of articleship and then 12 months of industrial training and then मतलब जो पहले जैसे 4.5 महीने की लीव मिलती थी या तो 3 महीने की लीव मिलती थी, तो अभी बेसिकली ये ख़त्म करके लीव मिल जाएगी, अभी जो करना करो एंड देन एग्जाम दो एंड एग्जाम के बाद देन देयर इज नो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, नो आर्टिकलशिप. No coming back to office okay. and working again for someone still. अच्छा, It's just okay. 6 months of study leave and just. एंड ये कब से एप्लीकेबल है, लाइक कब से शुरू हुआ आई है? गेस 1 जुलाई से जिन्होंने ज्वाइन किया ना आर्टिकलशिप, 1 जुलाई 2023. 2023. ओके, गॉट इट. उनसे उन जिन्होंने 1 जुलाई 2023 से आगे ज्वाइन किया है आर्टिकलशिप, उनके लिए एप्लीकेबल है. तो इसके लिए अगर टाइमलाइन बनाना है मेरे को, तो अगर सपोज इनका रिजल्ट आ गया जुलाई में, देन इन्होंने सपोज अगस्त 2023 में चालू कर दिया आर्टिकलशिप, लेट्स से केपीएमजी में, तो इनके लिए अभी अगस्त 2023 तो अगस्त 2024 तक ये केपीएमजी में काम करेंगे, फिर सितंबर 2024 में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे. Yes. अगस्त 2025 तक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी राइट. एंड देन 6 months study leave. एंड देन नवंबर 25 नहीं रहेगा इनका नहीं, अटेम्प्ट, द अटेम्प्ट विल बी मई 2025. तो 26. सॉरी माय बैड, मई 2026. Right, yes. बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो गया है. तो अगस्त 2025 से मई 26 पूरा पढ़ाई कर सकते हैं Yes. मतलब. हाँ. हाँ, ओके, गॉट इट. एंड फिर मई 2026 के बाद 2 महीने फ्री पूरा फिर. पूरा free. तो कुछ full कोई enjoy. आर्टिकलशिप नहीं, इंडस्ट्रियल कुछ नहीं, कुछ नहीं. तो दिस गिव्स मी अ गुड आइडिया कि हम लोग करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो लॉन्च किया है वो फिर मंडे टू फ्राइडे कर देंगे, जो अभी 8 से 10 का टाइमिंग हम लोग करते हैं केगर में. दिस इज अ गुड आइडिया फॉर मी आल्सो कि वो पूरा वीकडेज फुल डे बैच लॉन्च कर सकते एंड हैं. सो टू ऐड ऑन, मतलब क्या होता है ना, बेसिकली इफ आई आस्क समवन कि तुमको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना है क्या ना जाना है, जो भी एकेडमिक वाला पर्सन होता है या फिर जो भी होता है जिसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, उनका एक सिंपल आंसर होता है नहीं जाना है. मैं पूछा क्यों नहीं जाना है, मतलब इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, आपको कहीं कहीं मिल जाएगा. तो उनका यही होता है यार 3 महीने में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, 3 महीने ही तो देते हैं, 3 महीने से पुश करके 4 महीने दे देंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी. तो सबका मतलब मेन जो पॉइंट होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ना जाने का, वो यही होता है कि भाई उनको स्टडी लीव नहीं मिल पाएगी. Right. सो आई थिंक जो आईसीआई ने ये लाया है वो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बेसिकली. राइट. तो इसमें मेरे को तो क्या लग रहा है, लाइक माय ओपिनियन, कि फिर तो सभी लोग जाएंगे ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, Yes. फिर तो सब लोग आर्टिकलशिप 1 साल करेंगे और उसके बाद 1 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बिकॉज सबको पता है बेनिफिट्स क्या है. Right. तो मेरे हिसाब से तो फिर सब लोग ही स्विच करेंगे इंडस्ट्रियल No, ट्रेनिंग so में. It's also demand not बहुत easy. रहेगी. Not easy to get in also ना. हाँ मतलब बट आई मीन Because- माय सेंस इज कि अभी जैसे लोग अप्लाई नहीं कर रहे, बट अप्लाई तो मेरे को लग रहा है फिर सभी कर देंगे. So competition intense होगी. एंड बेसिकली फिर आर्टिकलशिप फर्म्स भी तो अपना कुछ करेंगे ना, वो भी बोलेंगे कि यार इफ यू वांट टू गेट इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो हम फिर दे विल मेक द प्रोसेस मोर डिफिकल्ट. बाय द वे इस पे एक और क्वेश्चन दैट लाइक थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछना है कि आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है क्या नहीं, डू यू वांट टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एंड इफ येस देन वी आर नॉट गोइंग टू टेक यू फॉर आर्टिकलशिप. हैव यू ऑल्सो एनकाउंटर्ड सच इशूज, एंड इफ येस हाउ डू यू टैकल दीज इशूज, मतलब इसका आंसर कैसे देते हो? सो बेसिकली मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. तो मैंने बिग फोर सब में इंटरव्यू दिया था. सो बिग फोर्स में व्हाट आई फील कि उनके पास एक प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है. मेरे टाइम ऐसा हुआ था कि आई हैव 3 months नोटिस पीरियड की, मतलब आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड. मेरे को उसके टाइम मतलब इंटरव्यू के टाइम कुछ नहीं पूछा ऐसा कि आप है ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाओगे कि नहीं जाओगे. मेरे ख्याल से उनको कोई मतलब भी नहीं है उससे, ठीक है. उनको बस आपकी स्क्रीनिंग करनी है, उनको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप उनके अंडर नहीं आओगे बेसिकली. क्योंकि बिग फोर में कोई और आपका इंटरव्यू ले रहा है जिसके बाद आपको काम किसी और के अंडर करना है, तो उनको बेसिकली मतलब भी नहीं भाई इंडस्ट्रियल करोगे कि नहीं करोगे. इनका 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है. मैंने तो मतलब बहुत अनप्रोफेशनल सी चीज़ करी थी. व्हाट आई डिड इज कि मेरे को पता था कि मेरे को बीसीजी में मतलब मेरा शॉर्ट था कि मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो जाना है, कहीं ना कहीं जाना है, कहीं भी जा लेंगे, लेकिन मेरे को केपीएमजी में कंटिन्यू नहीं करना है फॉर माई रीजंस, ठीक है. तो मैंने फॉर माय रीजंस सही बोला, सटल वे में, फॉर माय रीजंस. तो मेरे को पता था कि मेरा डेढ़ साल मतलब 1.5 ईयर्स कब खत्म हो रहा है. सो मैंने उसके जस्ट 3 महीने पहले नोटिस पीरियड डाल दिया, किसी को बिना बताए, किसी मैनेजर से बिना बात किए, सिर्फ नोटिस पीरियड मैंने डाल दिया. 2
ये इसकी। मुझे ना बहुत बढ़िया लगता है बिग फोर में कि देयर इज अ सेट प्रोसेस कि आपको जब मतलब उसके अलावा अगर कोई कुछ करता है यू कैन ऑब्वियसली रेज योर पॉइंट्स जो भी बट आपके विदाउट हैविंग एनी ऑफर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तूने डाल हाँ, दिया हाँ। वाओ यार दैट्स द कॉन्फिडेंस व्हिच Yes. वी Living शुड life on edge, I must say. yeah exactly बट या द पॉइंट विच यू मेंशनड इज ये बहुत सारे फर्म्स में होता है। आई हैव टॉक टू माय मेनी फ्रेंड्स जो भी आरबीजी में उनसे Right. सबसे मैंने पूछा है बहुत जो मिड साइज फर्म होती है या फिर जो स्मॉल साइज फर्म होती है हाँ। सब में ऐसा होता है कि दे लिटरली आस्क यू ऑन योर फेस कि भाई आपको इंडस्ट्रियल में जाना है तो हम नहीं अलाउ करेंगे, आपको अगर इंडस्ट्रियल में नहीं जाना है तो हम आपको अलाउ करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी ये और बढ़ने वाला है, जैसे ये 2 साल वाला फेज आएगा वैसे ये और बढ़ने वाला है क्योंकि सबको पता है कि इंडस्ट्रियल में जाना और ईजी हो गया। तो सब इसका जाएंगे। आंसर कैसे दे? अगर किसी मैनेजर ने पूछ लिया, इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी तो इधर मत आओ, बट लेट्स से अभी आर्टिकलशिप मेरे को तो करनी है बिग फोर में सपोज या तो कोई भी वो फर्म है, तो इसका आंसर कैसे देना चाहिए यूजुअली और कैसे देते हैं लोग यूजुअली यहाँ पे? So one of my friend was giving interview for a good CA articleship firm in good profile and उसको ये बोला कि अभी मतलब वो भी अभी बैच इस बैच का था लेटेस्ट बैच, सो उसको बोला कि विल यू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन द नेक्स्ट ईयर। उसको एक्चुअली जाना था, इवन ही इज़ ड्रीमिंग फॉर BCG एंड JP Morgan, सो बोले उसको जाना था, सो उसने बोला कि येस, सो उसका आगे प्रोसेस ही नहीं किया, सो दैट हैपेंड। बट फिर उसको अनफॉर्चुनेटली उसको दूसरी अच्छी जगह पे और अच्छा प्रोफाइल मिल गया। सो देर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट इज़ कि अगर वो आपसे लिख के ले रहा है डीड में आर्टिकलशिप के कि वी विल नॉट अलाउ यू टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, देन कुछ नहीं कर सकते आप, फिर आप नहीं जा सकते। बिकॉज इवन इफ देर आर ICAI रेगुलेशंस फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बट इफ़ यू मेक एन अग्रीमेंट तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कोई करता है अग्रीमेंट वगैरह इतना? सो इन इतना सम strict होता है? सो इन सम मिड साइज फर्म्स इन मुंबई ऐसे भी होता है कि इफ़ यू लीव अस बिफोर 3 years देन ICAI रेगुलेशन के ऊपर जितना स्टाइपेंड है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। To give it back. Yeah. Yes. It happens. yes. सो मतलब मेरे कोई फ्रेंड्स है जिन्होंने आर्टिकलशिप छोड़ा मे बी फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और मे बी फॉर ट्रांसफरिंग एंड उनको 3 lakhs and 4 lakhs रुपीज़ देना पड़ा। My रीज़न God. बीइंग क्योंकि ICAI का मिनिमम जितना है उतना तो उन्होंने दिया, उसके ऊपर जो दिया था वो उन्होंने रिटर्न बैक ले लिया। My God, So- this is so मतलब क्या? So it I is- have no words to say मतलब क्या ही यार ये? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कैंडिडेट टू टॉक टू देयर सीनियर्स एट दैट फर्म, जो फ्रेंड्स उनसे बात करें कि कोई भी फर्म में आप इंटरव्यू दे रहे हो एंड आप जा रहे हो तो जस्ट डोंट जस्ट आस्क फॉर प्रोफाइल एंड वर्क टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग, आस्क कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाने देंगे नहीं देंगे एंड ऐसे कोई क्लॉजेस है क्या, सो दैट इज़ वेरी got इंपॉर्टेंट। it. एंड हाँ. आंसर क्या दे दैट्स मतलब क्वाइट डिफिकल्ट, इवन आई डोंट हैव एनी मतलब इसमें क्या फिर आई मीन इन माय ओपिनियन फिर तो बोल दो कि नहीं जाना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड देन अगर जाना रहा तो ठीक है बोल दो, बाद में अभी मन बदल गया या तो हाँ, ये I हो mean, गया you are मतलब allowed to that is- change your yes, mind हाँ about of course like but- changing your mind is like खुद का हक है यार, उतना तो राइट हाँ, होना चाहिए ना। exactly. But But I've I didn't also know this. seen that, you know, someone I know had done 1 year of articleship in EY and उसे 1 साल के बाद शिफ्ट करना था इन BDO ट्रांसफर प्राइसिंग। उसने EY में जब बोला कि he wants to make a move, उसे उसके लिए बहुत इशू क्रिएट किया, बट when he joined BDO he made it very clear to his manager in the interview that see I want to go out for industrial training, so the manager was fine with it. Okay. So I feel that is something you should keep it even if someone doesn't ask, because chances है कि अगर चलो उन्होंने आपको हायर कर लिया बिना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए पूछे, बट अगर तुमने बाद में बोला कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ और उन्होंने फिर इशू क्रिएट किया, यू डोंट वांट दैट ऑन योर हेड बिकॉज तुम ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए प्रेप कर रहे हो। Right. एंड इफ यू आर ऑल्सो prepping for BCG, let me tell you, it's not easy to manage everything, and on top of that this pressure also that oh जाने मिलेगा या नहीं is not something you want to take on your head. So I think अपने end से भी communication थोड़ा अगर clear रख सको तो it's better that way. So had you mentioned in BDO that you want to go for industrial training? No, honestly I hadn't, and I didn't even have any plan, but Okay. when I applied to BCG I made it clear to my manager that see I have applied. So even before getting selected? Yeah, I have Oh, applied, okay. and I just told him that I'm not sure if I'll get in, but I'll let you know if I do. So he was very okay. nice about it, and he told me कि BCG है तो ही जाने दूंगा, कोई कुछ और होता तो मैं नहीं जाने देता। Oh, okay. तो he was nice about it, but yeah, I kept the communication very clear that Got I it. wish to go. Got it. Yeah, makes sense. How did you guys get to know about these opportunities? Industrial training का पता कैसे चलता है कि okay इसमें apply करना है, कैसे apply करना है? What is that entire process like? So, first of all, LinkedIn. You should be very active on LinkedIn. Just try to connect to different people in different profiles and different companies where you want to land in. That is very important because they are the people will post on LinkedIn that we are hiring CA industrial trainees. That is first. Second, there are some pages on LinkedIn who generally post about industrial training vacancies. So that is second. Which are these pages? Can you name them?
I don't have the list handy as such, but I will let you know, and you can add it in the description Sure, box of the video. sure. Then third will be, there are some WhatsApp groups as well. There are some Telegram groups where the vacancies generally come. Yeah, I think these 3 or 4. So there is no structured organized process the way it is there for CA final campus So placements. yes, there is. वैसा there नहीं है is. कोई? But I think Ankush can throw some light या on सो that. मतलब नहीं ICI डू हैव अ पोर्टल जहाँ पे ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की लिस्टिंग होती है, बट बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना वो दे नहीं डोंट आती माइंड, है। मतलब वो पता ही नहीं, मतलब वो करती ही नहीं है, मतलब उनके हिसाब से भाई दे आर बिग ना, वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैकेंसी निकालेगी, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो वो पोर्टल नहीं पे बट जाते ये ही नहीं है। वैकेंसी निकालेगी बट लोगों तक पहुंचेगा कैसे इज माय पॉइंट. लिंक्डइन तो ठीक है एक वे है, हाँ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब लोगों तक कैसे पहुंचेगा वो? But majorly तो LinkedIn, हाँ. WhatsApp groups, Telegram groups and friends. इसमें से पता चल जाता है. Yes. वर्ड ऑफ Got it. माउथ So for all the three of you कैसे पता चला था तुमको तुम्हारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के वैकेंसीज? सेम लिंक्डइन, व्हाट्सएप, तो- टेलीग्राम. अच्छा, okay. एंड सो एक प्रो टिप है इधर की, अगर आपने लिंक्डइन का अपना वो प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन 1 मंथ फ्री होता है, वो आपने यूज़ नहीं किया है तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम यूज़ कर, मैंने यूज़ किया था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के हाँ. टाइम, तो जितने भी मेरे को जहाँ भी मेरे को कंपनीज में मैंने जो लिस्ट बना के रखी थी वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थे उनके सब में मैंने ना लिंक्डइन रिक्वेस्ट डाल दी थी. Ah, I okay. want to That is get very into your- important. That's very smart also. Can Yeah. you tell us कि कौन से टाइप के कितने कंपनी से सब कंपनीज का नाम लेना जितने भी तूने लिस्ट बनाई थी, एंड क्या क्या टाइप के कंपनीज है, और ये सारे कंपनीज इंडस्ट्रियल ट्रेनीज लेते ही है क्या, मतलब जो नहीं, भी सो list बनाई एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मैंने पहले एक लिस्ट बना ली हाँ. एंड देन आई सर्च कि भाई वो लेते हैं कि नहीं थी? लेते तो हैं, कौन मतलब से जो लेते हैं उसका नाम है तेरे पास? उसका मैंने नहीं, उसका नाम नहीं है मेरे पास. सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने वहाँ पे आई सर्च की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है क्या कोई लिंक्डइन पे उस कंपनी के हिसाब से, अगर है तो हाउ फिर डिड मैंने यू उसको सर्च डाला. दिस? हाउ डिड यू सर्च दिस? सो यू जस्ट पुट द कंपनी नेम एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो आपको लिंक्डइन में अपने आप आ जाएगा कि अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, तो अगर नहीं है तो वहाँ पे जो भी मेंबर्स लिंक्डइन काम पे करते जाके हैं. सर्च सेक्शन में Yes. कंपनी नेम, लेट्स से डीबीएस बैंक, सो हाँ. डीबीएस बैंक Industrial इंडस्ट्रियल ट्रेनी training. एंटर, हाँ. एंड वहां पर जाके अगर कोई भी अगर होगा तो उसको रीच आउट कर लो Yes, एंड उसको yes. पूछ लो कि वैकेंसी कभी होगी एंड ऑल ऑफ दैट. और अगर Yes. कोई नहीं मिल रहा है, बेबी कोई लिंक्डइन पे नहीं है, तो यू व्हाट यू कैन डू इज जहाँ पे जो सीए काम कर रहे हो उस कंपनी में, उनसे भी आप कनेक्ट करके पूछ सकते हो कि दे हायर इंडस्ट्रियल. बट दिस इज वेरी अनऑर्गेनाइज ना, मतलब इन द सेंस कि बहुत एफर्ट नहीं है इसमें, लाइक इन द सेंस तुम लोगों को रीच आउट करना है, तुम लोगों को उनको बोलना है एंड ऑल. ऐसा नहीं है क्या कुछ कि एक पूरा एक जॉब फेयर टाइप या कैंपस प्लेसमेंट टाइप जहाँ पे कंपनीज आ रही है, इंडस्ट्रियल ट्रेनीज अप्लाई कर रहे हैं एंड देन उनका शॉर्टलिस्ट. So that's a gap you can fill by creating your own startup. Right, that's what I wanted to say. Yeah. गॉड. There are basically two, three maybe startups doing that, but वो छोटे मोटे स्केल हाँ. पे, मतलब इतने बड़े स्केल पे नहीं, Not- एंड नॉट द फ्रॉम कंपनी साइड, बेसिकली दे आर जस्ट पोस्टिंग वैकेंसीज जो भी उनको And they are not commercial. So they are Yeah. not doing it for money. They are just doing राइट. it. गॉट इट. Yeah. ये मेरे को नहीं पता था कि ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इतना अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है. दैट्स अ गुड आइडिया आल्सो. एंड इसमें अभी अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो गई, लाइक यू गॉट टू नो थ्रू लिंक्डइन ओनली एंड टेलीग्राम ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जो टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स है, लोगों को अगर उसमें पहुंचना है तो हाँ. वो कैसे कर टेलीग्राम तो सकते हैं? बहुत ईजी है. टेलीग्राम में यू जस्ट हैव टू सर्च कि भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो भी कीवर्ड्स होते हैं उन सब सर्च कर दो तो उसमें हो जाता है. व्हाट्सएप में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर आप टेलीग्राम पे बोल दो कि भाई कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो लेट मी Got it. जॉइन इन, वैसा करके. Got it. व्हाट्सएप पे यू कैन नॉट सर्च, तो टेलीग्राम पे हाँ. यू कैन सर्च, तो वहाँ से हो जाता है. Got it. Fair. Let's talk about the hot topic of this entire conversation, which is your entire interview experience. What are the type of questions which were asked to you in all the companies that you have interviewed for industrial training, and what were the answers you gave? तो ये थोड़ा डिटेल सेगमेंट होगा. Right. Maybe it will take around 15-20 minutes, including the three of you. तो इसमें मेरे को ये जानना है कि क्या questions पूछे थे और क्या answers दिए थे. Yes. तो maybe BCG is the hot topic, and I think it's like the dream company for many. So we can begin with you. So BCG interviews are standard case study formats. They'll just tell you, give you a problem statement के XYZ company है, इसके profits काफ़ी घट रहे हैं, tell us what is going wrong with the company. So it's like a structure that you have to, so this is a format that Harvard Business School actually brought in, the case study format, which was then obviously adopted by B schools in India also. And if you see, a lot of IIMs have their case books that they are bringing in. So उस हिसाब से तुम्हें prep करना है इन case interviews के लिए. There are certain frameworks with which you can solve these questions. Like जो for example जो मैंने दिया कि profit कम हो रहा है. There are companies who will come to you that, oh, we have this new product, we want to launch it in XYZ market, how should we do it? Or there's also something called as a guesstimate. Like मुंबई में, since I'm from Mumbai, I'll take this example कि तुम estimate करो कि एक दिन में या 12 घंटे में कितनी लोकल ट्रेन्स प्लाई करती है. सो यू हैव टू कीप ऑन एस्टिमेटिंग व्हाट हैपेंस.
Can you estimate that now for us? Estimate the number of local trains in Bombay in a day. I think those skills are rusty for now, but I will definitely be able to. नहीं बट जस्ट लाइक ओवरव्यू कैसे लाइक व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड कैसे सोचते हैं लाइक इसमें व्हाई इज बीसीजी आस्किंग दीस क्वेश्चंस एंड व्हाट आर दे टेस्टिंग So from this, what they want to see is to what extent you can think. I'll give you an example that again this is a guesstimate I was actually practicing. Someone just asked me how many toothbrushes are used in the country. ओके So again you have to divide the country into population. You have to factor in that majority Indian population is rural. So they will probably not all of them will use toothbrushes. Some will use those traditionally, datuns that we call. कोई कोई उंगलियों से भी करते हैं ना ब्रश मतलब टियर 3 टियर 4 वो सब भी बोलना है क्या इंटरव्यू में Yes, I mean depending on what your vibe is with the interviewer. You can make it fun. Yeah. So this is basically they want to see how much you think. They want to see कि तुम कितना ऐसे narrow down कर सकते हो. तो toothbrushes use होते हैं. Like okay, you divide the population into urban and rural, and then you also factor in the thing that dentists recommend that every 4 months you change the toothbrush. Oh, wow. So these are the toothbrushes that are in use. What about the toothbrushes that are already in stock and that are produced? So they want to see to what extent तुम कितना अपने ख्यालों को खींच के तुम कितना granular level पे दे सकते हो. So this is what they want to test ultimately. And how many rounds were there for you for me, I went through I think 3 rounds. Yeah. okay I had and 3 what were the 3 cases which you were asked So the first one was a very plain case, I'd say. The interviewer just asked me that, oh, this is a light and bulbs manufacturing company. Its costs are going up. Examine why. okay So again, I went through structuring, asking him questions that, oh, is it just our cost or every competitor's cost is also going high? Or certain questions you ask Yeah. and then you try benchmarking that वो Yeah. competitor ये कर रहा है, ये new process लाया है production में. If we are not doing it, we are lagging behind, and that's why probably we are taking more time, more labor also, intervention that is required. So that way the technical costs were high. So that's where I got to ultimately. got it The second round was actually a bummer for me. The interviewer, the question he asked me was a very simple cost accounting question which I did not expect at all. C-enter का question था. And उसके बाद एक और follow-up question पूछा which he clearly, so the interviewer was from an MBA background. He clearly told me that इसका आंसर आपके CA foundation के economics textbook में है. And I was like, oh my god, क्या how does question he क्या know? था what was the question It was something related to elasticity. okay So that way, but sort of I sailed through it. I could ultimately explain the logic to him even though I could not get the keyword. So that way my thinking, how my thought process is, that was secure. I did not falter on that part. Probably keywords I must have not used, but they want to know how much you can think. तुम Yeah. कितना drill down कर सकते हो एक चीज़ को. Third round was the partner round, and in that it was a very very logical question. There's an ATM in your area. Tell me why are people not coming to it? Now there could be only 2 reasons. Either there are a lot of ATMs, or the one that is there, if it's the only one in your area, वो ढंग से नहीं चल रहा है. So could be either या तो अगर लोग नहीं आ रहे तो क्यों, probably denominations नहीं है. So you also bring in some of your personal experiences. Like I know that I have been to ATMs and seen that okay 500 के denominations नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 2000 के denominations है, and I don't want those. So probably I will not go to that ATM at all. wow yeah So that's like a personal thing you get in. So they'll also want to test how much you observe around you and see तुम अपने observations कितने याद रखे, कितने उन्हें build in कर सकते हो तुम्हारे case interview में. So that was also pretty smooth. So they basically want to know how structured are your thoughts, how well you can communicate them, and how also you can ultimately concise them, because at the end of every interview they tell you that concise the case for me. So you just tell them the problem statement and what problems did you identify, and 1 or 2 recommendations on how the problem can be tackled. got This it is what they ultimately test. Very interesting. I'll tell you my experience also. So, although I did not give for industrial training, but this was something very similar for me also when I was giving my BCG interviews. The questions were like, there is estimate the men's perfume size in India. Then one of the questions was very tricky. Estimate the number of golf balls that can fit in an aeroplane. One question was around a particular ice cream franchisee which is there and that is not working out. Like there are no people are not going there.
So can you identify the reasons? And also, I think one of the main skills which they want to test apart from communication is also problem solving, like structuring your thoughts. And they don't want to get the correct answer because there is no right or wrong answer Right. in Yeah, these exactly. in these questions. They just want to see कि okay तुम लोग कैसे structure कर रहे हो and whether your thought process is something which is resonating to their thought process as well. So that is something which I can resonate with very completely. And इसमें मेरे को एक सबसे बड़ी पता है like सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि even if you don't get into BCG or let's say even if you don't want to get into consulting, I highly recommend everyone to at least solve one entire case book because ये problem solving is a skill that is going to help you in any career. Consulting छोड़ दो, even let's say private equity, venture capital, investment banking, even in your entrepreneurship journey और कुछ भी मतलब ये स्किल ऐसी है कि तुम लोग स्ट्रक्चर करना सीख जाओगे सो यू विल बी एबल टू एटलीस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर. मैं जब इंटरव्यूज़ दे रहा था तब मेरे दिमाग में यही चलता था कि इसको मैं कैसे ब्रेक डाउन करूँगा. मैं स्टारबक्स गया था, मैं वहाँ पे देख रहा था कि अगर इसके रेवेन्यू कम हो रहा है तो क्या रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे देख के. फिर मैं एक मॉल में गया तो मेरे को ऐसे दिमाग में आया कि मेरा इंटरव्यूअर पूछ सकता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ मॉल्स, एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टोर्स विच आर देयर इनसाइड दैट मॉल. सो दैट माइंडसेट बिकम्स वेरी problem solving, a very critical thinking kind of a mindset. So I think that is something which I could resonate with you. Yeah, you start observing things from a different perspective altogether after practicing case studies for a month or so. Right. So That is very Prasanna, important. maybe we'll go to you, your interview experience at all the companies including BCG of course. Okay, so let me go first with the Motilal Oswal Private Equity. So the major questions were around three aspects. One is financial concepts. So maybe the basic concepts like free cash flow to firm, free cash flow to equity, or some basic ratios. Which is higher, cost of debt, cost of equity. ये सब भी पूछते हैं ना. Yeah. Even they will ask you leverage, the basic thing that you have learnt in CA intermediate. What is operating leverage? Secondly, about what is your thesis about investment. So do you invest? You can't say no. Because you are going to invest in companies, you are going to analyze investments. If you don't like investing, then they will not take you in the company. Right. So you say yes, then they will ask which companies. So I have given some 3 names, let's say. So they will select anyone and will ask you, so why did you invest in this stock? So like I mentioned Asian Paints. So why Asian Paints? You are a Saurav Mukherjee fan, is it? Not yeah, maybe. Yeah. So why Asian Paints? So then I explained everything from about Asian Paints, and you need to prepare for it. I knew that this question will come about maybe the 3 stocks that I am telling them. So they asked me ki why Asian Paints. Then I will say financial points about Asian Paints, right from the share price, market capital, PE ratio, industry PE ratio, their revenues, their EPS, their working capital ratio, everything you should know. Then So you knew all of that. yeah, I prepared. Wow. Okay. That is very important. Secondly, apart from financial metrics, operational metrics. So the industry positioning of the Asian Paints. So the industry fragmentation. So market leaders, market share, and second biggest player, third biggest player, major competitors, the key trends in the recent past. So why Asian Paints is the leader since last 70 years. So then they might ask you, do you read annual reports? So you can't just bluff. Then they will ask कि क्या क्या होता है annual report में, and क्या तुम पढ़ते हो, क्योंकि annual report is a 250-300 pages thing. So वो भी आना चाहिए. और you can simply tell them कि नहीं, मैंने ये इतना नहीं डीप नहीं देखा था, ये नहीं पढ़ा था. Just be honest. ज़्यादा bluff नहीं कर सकते, क्योंकि bluff किया तो they are at the supreme level in investment, in private equity. They are all IIM graduates, IIM ABC, and they are like, उनको सब पता है, उनको सब सेक्टर का सब पता है. So you can't bluff because they will catch you. वो इतना ड्रिल डाउन करेंगे, देन उनको समझ जाएगा कि यू आर जस्ट ब्लफिंग. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो टू हैव दैट बिजनेस अक्यूमेंट and keeping yourself updated with things like business, economy. It's not about stock market. So many people think कि private equity में जाना है तो हम stock market follow करें क्या. बिल्कुल नहीं करना है. तुम stock market करोगे, तुम CA फाइनल भी मिस करोगे, आर्टिकलशिप में भी नहीं कुछ सीख पाओगे, और तुम्हें ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. इट्स नॉट अबाउट कि तुम स्टॉक मार्केट सीखो एंड पैसा बनाओ, वो वाली बात नहीं है. तुम मे बी 1 या 2 कंपनी उठाओ, मे बी 3 कंपनीज इन 3 डिफरेंट इंडस्ट्री, एंड रिसर्च करो वो इंडस्ट्री में होता क्या है, उसके मेट्रिक्स क्या क्या है. हर इंडस्ट्री में अलग होता है. जैसे लेट्स से पैथोलॉजी लैब है तो टेस्ट पर पेशेंट, रेवेन्यू पर टेस्ट, रेवेन्यू पर पेशेंट, ये मेट्रिक्स भी देखने पड़ते हैं. एंड ये सब अवेलेबल होता है कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में. मतलब 99% पीपल डोंट गो टू इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड अर्निंग्स कॉन कॉल. दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी जो एवरी क्वार्टर आते हैं, एंड उसमें पूरा इन्वेस्टर के लिए प्रेजेंटेशन बनाया हुआ रहता है आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क.
उसमें सब कुछ मेट्रिक्स दिए हुए रहते हैं, उनके ट्रेंड दिए हुए रहते हैं. So you should know, if you are telling कि you have invested in HDFC Bank, then you should know what is AUM, asset under management, and what is the AUM size of HDFC Bank. You should know. So that is very important, that you can't just bluff, and you should prepare for your interview if you are applying for these roles. Not only private equity, even for equity research roles. That is very important. So second type of question was on investing, and third type was on my previous experience of articleship. So and since I have mentioned कि मैंने private equity players के लिए tax DD वगैरह किया है, and मतलब I worked for a private equity firm जिसका $1 trillion है AUM, the only private equity global private equity firm. So उसके एक major deal जो हुई last year, उस पर मैं काम करा था. तो इनको सब पता होता है. अब ये since they are working in private equity, they know everything. Then they will ask कि अच्छा तुमने टैक्स में क्या देखा, क्या नहीं देखा, कितना पता है. ऐसे नहीं कि तुमने काम किया कि नहीं किया, कि सिर्फ तुम थे उस डील पे नाम के लिए. So they will ask you. So that is very important. So if you are writing anything on your CV about your articleship experience, then you make sure कि you know. Even if you have not worked on that and you have written that, you make sure कि you understand everything on around that aspect, because they will ask you. So that was about Motilal Oswal private equity. HUL interviews were quite different. First interview is a different concept brought in by HUL. So they have an app, HireView named app, third party app, and in that app there will be 10 minutes interview. There will be some questions. You will be given 30 seconds to just think and 3 minutes to answer. So that is very challenging. That is really very tough, because the questions were like about economy. So I don't remember exactly, but some of the questions were like, what are the some challenges behind India's $5 trillion economy? Okay. And you just have 30 seconds to think and then 3 minutes to talk. So if anyone is not updated with economy and everything, then it's quite difficult for him just to bluff also for 3 minutes. It's very difficult. So, and all the 3 questions are on economy for HUL test. So that was the first round. And after that round, I felt that I will be rejected by HUL, because मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया था. मतलब as per my expectation कि मुझे लगा 3 क्वेश्चन आएंगे, सोचना है, बोलना है, वो तो मैं इम्प्रॉम्प्टू का भी मतलब बोल देता हूँ बहुत जगहों पे. बट क्वेश्चंस वर चैलेंजिंग एंड मुझे लगा नहीं होगा, बट हो गया. Do you remember the other 2 questions? Not really, but Got it. I will try. I will Got share it. Yeah, that yeah, with sure. you. Yeah. तो Then- बस इतना ही, HUL का इतना ही था. That was first round. Oh, okay. That was not first round. That was screening. अच्छा, okay. Just to screen applicants after CV shortlisting. Okay. And once you How many clear that, CVs were shortlisted? Any idea? नहीं, no. How many people were there in the like first round or second round? No, Any no idea? idea. वो भी no नहीं idea. पता. नहीं. अच्छा, okay. So उनका ऐसे organized setup नहीं था कि Okay, सबको okay. सब पता हो. Got it. Like BCG. ठीक है. So that was one. Second round में questions were around the actual operations that you are going to do. So the first question was कि you are going to a factory of HUL. Let's say कोई भी एक red label tea उसके factory में गए. So क्या risk and क्या control? Simple basic question. And since मेरा stat audit का background नहीं था, तो मुझे इसका आंसर और भी थोड़ा मतलब मुश्किल था देना. Yeah. So I made it clear, very clear to the interviewer that I don't have stat audit background. So I might not be able to give you perfect answer. But तब वही हुआ था, तब मैं BCG के लिए प्रिपेयर कर रहा था. So मुझे वो स्ट्रक्चरिंग की आदत लग गई थी. So मुझे आंसर तो कुछ नहीं आ रहा था तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एक्सेप्ट 2-3 पॉइंट्स ऐसे रैंडम आ रहे थे. मैंने डिवाइड कर दिया उसको कि फैक्ट्री रिस्क एंड कंट्रोल ना. सो मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, बट मैंने उसको डिवाइड कर दिया था. सो द इंटरव्यूअर सेड कि इट वॉज क्वाइट गुड दैट यू स्ट्रक्चर्ड इट प्रॉपरली, बट आगे मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया. सो वो बोले कि और सोचो. So it went in that way, and there were some questions regarding articleship experience. And again in the third round, the questions are similar. On I don't remember exactly, but yeah, on supply side, business side, in inventory and all. So that was about HUL. In BCG, I will just tell you the 3 cases. First round, the case was that your client is a biscuit manufacturer in North, mainly in Delhi and Haryana, and currently they are at the 4th position in market share. They want to reach the topmost position in next 3 years. How will you go about it? So again, this was very broad question. Then I asked some relevant questions like the other competitors, their market share, and I was thinking that asking for market share of each competitor will not be much relevant. But I just asked, and he said that is very important. And he even told me 16 figures. 4 competitors into 4 states, 16 figures of market share in percentage. He said that you write, I will tell you the market share. And he was actually traveling at that point of time. He was going for office. He was in the cab. So that went well. Then second round was the guesstimate. So the second round, he was a principal and he was very friendly.
he just asked me, what do you like? So okay, you are a cricket fan, so do you watch IPL? So okay, you are IPL, so in IPL which team you support? So I said Rajasthan Royals. Then okay, why Rajasthan Royals and all? Then he said, okay, so you are good with maths. So from my CV, he understood that I am good with maths and all. So he said, just estimate the total revenue of Rajasthan Royals for one IPL season. So I just divided into 5 parts, like the 5 major revenue streams for any IPL franchisee. So right from ticket sales, share, then merchandise, and 5 different parts. It went well. Then in third round, the question was that your uncle has a farm in Nasik, and what should he do about that farm? So he has an agricultural land. What should he do? Simple, Very, basic very question. unconventional. Very unconventional. Then you bring the Sula part. There is Sula wines in Nasik. Then you can produce grapes if the land permits. So you can export or you can sell it to Sula. And there was a much of discussion, but it was quite broad question and Right. very generic question. And I got to know that Sula is also one of your favorite places, right? No. No, never. Right, just kidding. Yes, so that was all about my 3 interview experiences. So got out of 9, I cleared it. एंड इसमें जो BCG यू सेड कि ये तो लिंक्डइन से पता चल गया, एंड HUL एंड मोतीलाल ओसवाल भी लिंक्डइन से ही पता चल गया. Yes, yes. Okay, got it. So you followed someone there, like was working No, there? so for HUL, I got a LinkedIn message from hiring Acha. agency. Oh, okay. So for HUL, So what kind of agencies are these? even I don't have any particular clue, but there is a person from some agency and he texted every ranker for this Acha. industrial training. Okay. And for Motilal Oswal, I got a message directly from the HR. Okay, Yeah. got it. Yeah, because she was looking for rankers plus yeah, Big Four. because for like BCG, McKinsey, or maybe these MBBs and also Michael Page and Native are like 2 of the Right. popular agencies which will help you for recruitment. I didn't know that for industrial training also there is like a separate agency. Yeah. I assume one of them would only be there probably because Yes. ye Just private for equity HUL. and BC. Acha, for HUL, right? Yeah. So for them like some agency would be there. Cool. So we'll go to Ankush then. So Yeah. your interview experiences and how did you answer? What kind of questions were there and how did you answer them? So basically, my first interview experience was that I just searched their company names. It was India RF Piramal. Oh. Yeah. So अब उसमें ऐसा था ना कि जस्ट लाइक आई सेड कि मेरे को BCG में आना था कि आई वाज काइंड ऑफ एक्साइटेड टू गो टू BCG. तो मैंने प्रिपेयर कुछ नहीं किया था. इट वाज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट साइड कि मेरे को है ना हेल्प करना था उनको इन्वेस्टमेंट के कुछ एनालिसिस करने में कंपनी में उनको कुछ इन्वेस्ट करना. This is also private equity. Yes. fund, काइंड right? ऑफ Okay. तो अब उनका अब इसमें था ना थोड़ा बहुत है ना स्टाइपेंड वाला मैटर था थोड़ा कि उसमें स्टाइपेंड है ना 20,000 थी. सो आई वाज लाइक यार BCG में 1 लाख है, इसमें 20,000 है, तो मैं इसके लिए क्यों इतना मतलब एफर्ट्स डालूं, इसमें तो ठीक है हो जाएगा वैसे टाइप सब ठीक है. तो मेरा पहला राउंड था. तो इट वाज लाइक पता नहीं मेरे को लेवल याद नहीं, लेकिन उनके साथ मेरा राउंड था. तो उसमें उन्होंने दे आस्क्ड मी अ सिंपल क्वेश्चन कि सबसे पहले तो आर्टिकलशिप से रिलेटेड. सो मैंने थोड़ा सा उसमें ब्लफ क्या कर दिया. सो आई डिड माई पूरी आर्टिकलशिप मेरी जो 1.5 साल की थी वो थॉमस कुक में थी. थॉमस कुक बेसिकली टूर्स एंड ट्रैवल्स एंड फॉरेक्स. तो मुझे ना उनके बिहेवियर से समझ में आ गया कि उनको इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, मतलब उनको मार्केट के बारे में इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है. सो ही वॉज लाइक कि और कोई बता, और कोई कंपनी में तूने किया है क्या. एंड तब मैं कुछ प्रिपेयर कर, मैंने सिर्फ थॉमस कुक के बारे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था. भाई उसका क्या क्या है, कैसा है, कहाँ गए, कहाँ है. मैंने और किसी कंपनी के बारे में प्रिपेयर नहीं किया था. सो व्हाट इट इज लाइक व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ लिस्टेड कंपनी इन स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो उसमें कुछ ब्रेक्स आते हैं. मतलब हाँ ऑब्वियसली आप पूरे साल तो स्टैट्यूटरी ऑडिट करते नहीं रहोगे, तो बीच में जो ब्रेक्स आते हैं ना उसमें लोग आपको प्राइवेट क्लाइंट पकड़ा देते हैं 1-1 महीने के लिए सिर्फ. ठीक है. तो मेरा जब कोविड का टाइम था, जब मैं वर्क फ्रॉम कर रहा था, तब उन्होंने एक प्राइवेट क्लाइंट मुझे दिया था करने के लिए. मतलब मुझे मतलब 1-2-3 और लोग थे, उनको दिया था करने के लिए. एंड उसमें बस बेसिकली मतलब जो मैंने लिस्टेड में काम किया वैसा ही सेम काम था, और उसको मेरे को बस रेप्लिकेट करना था बेसिकली. उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग वगैरह लगाने का काम नहीं था. तो अब मेरे को उसका नाम याद आया अचानक से कि हाँ मैंने इसमें काम किया था. अब ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने उसका नाम ले दिया कि आई हैव ऑल्सो वर्कड ऑन दिस क्लाइंट. अब फॉर्चुनेटली मतलब ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली उसको उस इंडस्ट्री के बारे में पता था. मतलब वो दैट वाज बेसिकली PVC लेदर कुछ सीट्स वीट्स कवर बनाती थी वो कंपनी. ठीक है. अब मुझे इसका कोई आइडिया नहीं भाई वो कंपनी क्या करती है. मेरे को तो बस ऑनलाइन कुछ काम आया है, किसी ने दिया है, और मेरे को बस ये करके देना है, लेजर स्क्रूटिनी, अदर एक्सपेंसेस जो भी करके देना है. मैंने इतना दिमाग भी नहीं लगाया क्योंकि तब मैं ना मतलब मेरे को ऐसा था कि यार पढ़ाई बहुत जल्दी करनी है. तब मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, बस मैं जो काम आया करके दे दो, बस पढ़ाई करते रहो, ऐसा था. तो तब मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती थी. तो अब उस कंपनी के
बारे में ए टू जेड कोई आइडिया नहीं, मेरा ऐसा प्लान भी नहीं था मैं किसी को बताऊंगा मैंने उस कंपनी में काम किया है, और मेरा मुंह से निकल गया मैंने इस कंपनी में काम किया है. सो ही वाज लाइक, उसने पूरा ड्रिल डाउन करके पूछा कि भाई ये कंपनी क्या करती है एग्जैक्टली. अच्छा तो ये पीवीसी लेदर तो करती है, इसमें 2 टाइप के पीवीसी होते हैं पता है तुझे, इसमें से एक पीवीसी कौन सा करती है तो बता. तो उसमें मैंने बोला नहीं वो तो मुझे आइडिया नहीं है. फिर उसने और कुछ पूछा कि अच्छा ये कंपनी में ये करती है तो इसमें और क्या होता है. मतलब ही वाज काइंड ऑफ, बहुत मेरे को पता चला था उनसे कि भाई उनको पूरा आता है ये इंडस्ट्री के बारे में, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला तो वो पकड़ लेंगे. तो वो थोड़ा नेगेटिव चला गया मेरे पे कि यार मैंने इस पे काम किया और मुझे कुछ पता ही नहीं इस कंपनी के बारे में. बाकी थॉमस कुक के बारे में मुझे सब कुछ पता था लेकिन उनको नहीं पता था तो उन्होंने पूछा नहीं. तो ये एक पॉइंट था. एंड दूसरा जो उनके साइड से पॉइंट था, मतलब ये तो मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस वाला पॉइंट था. अब जो उन्होंने पूछा बीटा के बारे में कि व्हाट इज सिंपली कि भाई बीटा क्या होता है. अब आई डिडंट कैच दैट, मतलब जो कीवर्ड होता है ना सेंसिटिविटी, अब वो मेरा जो कीवर्ड था वो नहीं आ पा रहा था. मैं उनको समझा ही नहीं पा रहा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. वो कुछ बोले थे अच्छा इसका कुछ कीवर्ड होता है, मतलब एक वर्ड होता है, वो वर्ड बता देना क्या होता है. तो आई वाज लाइक नहीं मेरा वर्ड, क्योंकि हमने वो पढ़ा था इंटर में, ठीक है, और वो वैनिश हो गया था मेरे दिमाग से. मेरे को वैसे समझ में आ रहा था कि मार्केट के हिसाब से जितना मूव होता है उसमें उससे बीटा कैलकुलेट होता है, मैं ऐसे ऐसे बता रहा था लेकिन वो सेंसिटिविटी नहीं आ पा रहा था. तो मुझे उनके चेहरे से पता चल गया था भाई वो इंसान एकदम डिससेटिस्फाइड है मेरे इंटरव्यू से एंड मेरा नहीं होने वाला है. सो पहला इंटरव्यू राउंड, मेरा पहला एक्सपीरियंस जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का था वो ऐसा था, बहुत डिमोटिवेटेड कि यार मैं मतलब क्या कर रहा हूँ जीवन में. पहला था. ये इसके बारे में पता कैसे चला था अपॉर्चुनिटी के बारे में? लिंक्डइन. अच्छा, लिंक्डइन से. ओके, सो यू हैड अप्लाइड. Yes. Yeah. Sorry to interrupt, but I would like to tell something about India RF. So it's a Bain Capital plus Piramal Group's Yes. joint venture, and it's a private equity. So there are only 2-3 private equities which take industrial training. One is Motilal Oswal Private Equity, the actual private equity side. Second is India RF, but it is a stressed asset fund. So it invests in distressed companies. Yes. And the third is Banyan Tree, but Banyan Tree, I'm not sure whether they hire for investment team or for CA accounting type of role. So that we need to confirm. India RF is very good, and the reason you bluffed, that was very wrong in the industry that they already know. Because in PE, if you are working in particular industry, you know everything right from the raw material, you know everything. Right. So that was going to happen. I won't be surprised when Prasanna will be taking interviews of industrial training and वो grill करेगा businesses में. ये इसका पता है, इसका AUM क्या होता है, NIM क्या होता है, इसका ये cost income ratio कितना होता है. ठीक है, रॉ मटेरियल कौन सा यूज करते हैं. Exactly. Yeah, sorry, go ahead. या सो ये हो गया. उसके बाद आई वाज लाइक यार अब कहीं देंगे तो भाई थोड़ा प्रिपेयर करके देंगे. तो DBS का आया. DBS का भी सेम मेरे को लिंक्डइन से पता चला था किसी से कि DBS ने उन्होंने वैकेंसी निकाली थी. सो व्हाट, अगर आपको कोई मतलब इफ़ यू वांट टू गो इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ना, तो आपका कुछ कंपनीज जैसे BCG हो गया, फिर कुछ कंपनी होती है जो ऑफिशियली वैकेंसी निकालती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की. कुछ मतलब बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो इट वर्क्स थ्रू नेटवर्क. कि सपोज मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ DBS बैंक में, अब मेरे जो साथ में जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा है सिर्फ उसको पता है कि कोई वैकेंसी है, फिर मैंने कुछ अगर लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया तो पता चलेगा वैकेंसी है. उनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उससे कुछ नहीं आता कि इंडस्ट्रियल वैकेंसी है. तो आपको है ना अलग अलग नेटवर्क्स, अलग अलग जो भी काम कर रहा है उससे नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप. कि भाई अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहीं और काम कर रहा है तो यू विल हैव टू कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम. उससे आपसे पूछना पड़ेगा कि भाई तेरा अगर रिप्लेसमेंट आया तो प्लीज़ टेल मी कि भाई तेरे हिसाब से अगर कुछ तेरा रिप्लेसमेंट या फिर तूने कहीं और देखा कि वैकेंसी आ रही है तो वहाँ पे आप मुझे बताना. क्योंकि कोई ऑफिशियली नहीं होता कहीं से भी वो सब. मतलब ऑब्वियसली मेरा जो मैनेजर मुझे बोलेगा भाई तू लाके दे. सो आई विल पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन या फिर मेरे जो जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे जो भी कर रहे होंगे सर्च, मैं उनको पूछूंगा. सो ये थोड़ा सा था. तो DBS बैंक में क्या हुआ था कि मैं घर पे था, ठीक है, मतलब मेरे वडोदरा में, मेरा घर वडोदरा में. तो यहाँ पे उनका ऑफिस था. अब ये यूजुअली जो थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यूज ऑनलाइन होते थे, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि DBS बैंक में इनका बैंक है तो उनका टाइमिंग होता है 9 से लेके 6, ठीक है. यूजुअली जो टाइम होता है बैंक में वो था. तो अब इनके मैनेजर्स जो, मतलब मेरा जो डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था वो सीनियर VP के साथ इंटरव्यू था. डायरेक्ट फर्स्ट राउंड था और सीनियर VP के साथ था, ठीक है. सो अब उनका टाइट शेड्यूल रहता है तो उन्होंने ऐसा बोला था कि आप 8:30 को आ जाना ऑफिस, चर्च गेट नरीमन पॉइंट जो हमारे RVG से बहुत दूर है, ठीक है. तो उन्होंने बोला था 8:30 पे आप आ जाना. और 15 या 30 मिनट का शेड्यूल हुआ था इंटरव्यू. 30 मिनट में शेड्यूल करके फिर आपको जाने देंगे ऐसा. अब मैं फिर स्पेशली मैं इसके लिए पहले तो हॉस्टल आया अपने घर से और फिर वो इंटरव्यू देने के लिए गया था. तो उसमें अब मुझे ना फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे ना रोल के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने उनसे एक दिन पहले रोल पूछा था. और वो तब मैं मतलब बहुत मैंने कैजुअली रोल पूछा था. कैजुअली इन द सेंस कि मैं फुटबॉल खेल रहा था और फुटबॉल खेल के आया, मैं ऑटो में बैठा था. मैंने उनको कॉल किया कि आप रोल तो बताओ क्या रोल है, वैसा 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 वाला. तो उन्होंने कुछ FIG करके, अब मेरे को FIG तो पता ही नहीं. मैंने नेट पर भी सर्च किया FIG वो कुछ पर्टिकुलरली नहीं आ रहा था. ऐसा पता था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रुप, लेकिन कुछ डिटेल में मुझे पता नहीं चला था कि भाई FIG होता क्या है वैसे टाइप्स, ठीक है. तो मैं
मैं बेसिक जो होता है उस बैंक के बारे में, डीबीएस बैंक क्या होता है, वो सब जो बेसिक हम पढ़ते हैं वो सारे एकदम पढ़ के चला गया भाई, कब आया था, कैसे आया था, किसने क्या किया उसके बारे में, वो सब मैं पढ़ के चला गया। अब मेरा इंटरव्यू था सीनियर वीपी के साथ, वेरी स्मार्ट मैन, ठीक है। तो जो भी शुरू किया इंटरव्यू, तो शुरू में उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ पे आर्टिकलशिप करी है, मैंने बोला कि पीएमजे में, थोड़ा आर्टिकलशिप के बारे में पूछा कैसा किया, जस्ट द सिंपल क्वेश्चन कि भाई थॉमस कुक में क्या किया, क्या करती है वो कंपनी, दैट्स ऑल। फिर उन्होंने डीबीएस बैंक के बारे में पूछा कि डीबीएस बैंक क्या है, डीबीएस बैंक कब शुरू हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत मतलब पहले तो जनरल यही पूछा कि भाई डीबीएस बैंक के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है। आई वाज लाइक कि हाँ मुझे पता है डीबीएस बैंक के बारे में। फिर उन्होंने पूरा डीबीएस बैंक के बारे में पूछा कि भाई कितने ब्रांचेज है, या फिर अभी कब से आई है डीबीएस बैंक इंडिया में, सम वॉट दैट। फिर उन्होंने सिंपल है, उन्होंने जो एफआईजी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि चल तेरे पास दो कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है कमोडिटीज़ में, सपोज स्टील में, ठीक है, जो स्टील मैन्युफैक्चर करती है, और दूसरी एफएमसीजी कंपनी, ठीक है, इन दोनों में से कौन सी कंपनी का जो पी है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, पी रेशियो कौन सी कंपनी का ज़्यादा होगा, ठीक है। सो अब ये मेरे लिए ट्रिकी क्वेश्चन था, ऑब्वियसली पता नहीं किसी के लिए हो ना हो, मेरे लिए तो ट्रिकी क्वेश्चन था ये, क्योंकि मेरा उस वे में माइंड डेवलप नहीं था इतना स्टॉक मार्केट रिलेटेड, ठीक है। तो अब मेरे लिए टिकट क्वेश्चन था, अब मैं पता नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस एक नोटपैड पढ़ा था मेरे सामने, पेन पड़ी थी, मैं कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ा एक्टिंग कर रहा हूँ कि हाँ मैं कुछ सोच रहा हूँ ऐसा करके। एंड ही वॉज लाइक नहीं, तो दिमाग में सोच, तू सोच, मतलब तू खुल के सोच और बोल के सोच, ताकि आई वॉन्ट टू नो योर थॉट प्रोसेस। मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं, अगर तू आंसर गलत भी देगा तो चलेगा, लेकिन मेरे को तेरा थॉट प्रोसेस जानना है तो कि तू कैसे सोचेगा। सो आई वॉज लाइक कि हाँ मतलब ओके, सो एक स्टील में है और एक एफएमसीजी में है, ओके, सो यू वांट टू नो अबाउट पी रेशियो। तो पूछते अच्छा पी रेशियो तो पता है ना तुझे, तो लाइक हाँ पी रेशियो मुझे पता है कि इट्स लाइक एमपीएस अपॉन ईपीएस, ठीक है। तो हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है थोड़ा सोच, मतलब कैसे होगा, कैसे डिसाइड होता हुआ पी रेशियो। सो अब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा सो यू गिव मी अ पर्टिकुलर कंपनी ना, कि भाई कंपनी से आई कैन थिंक ऑफ कि भाई पी रेशियो क्या। तो बोले नहीं वो इंडस्ट्री के हिसाब से भी होता है पी रेशियो, कि भाई कोई इंडस्ट्री का ज़्यादा होता है, कोई इंडस्ट्री का कम होता है, वैसे करके। सो थोड़ा बहुत ये थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन हुआ, उन्होंने थोड़ा मुझे हिंट दिया कि भाई गाइड गया कि कैसे कैसे तू सोच सकता है यही करके। एंड मैं थोड़ा उनको फॉलो करते करते आंसर पे पहुंच गया कि भाई एफएमसीजी में ज़्यादा पी रेशियो होता है क्योंकि उनका टर्न अराउंड टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और स्टील में थोड़ा कम होता है क्योंकि उनका टर्न अराउंड टाइम बहुत कम होता है, कस्टमर्स भी बहुत कम होते हैं। सो दिस वाज आई थिंक वो B2C वर्सेस B2B वाला एंगल भी आएगा इसमें। और फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि यू ऑलवेज वांटेड टू, मतलब तुमको सिर्फ बैंकिंग में आना था क्या। सो अब इसमें ना देयर कैन बी टू थिंग्स, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यूअर को बहुत अच्छा फील करवाना है कि भाई हाँ, तो मैं तो हाँ बोलूँगा कि भाई हाँ मेरे को तो बचपन से मतलब मेरा सपना था कि मैं बैंकिंग में आना चाहता हूँ, फाइनेंस में आना चाहता हूँ। और दूसरा इसका ये हो सकता था जो मैं ऑनेस्ट था कि यार आई एम रेडी टू एक्सप्लोर, मतलब मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैं बैंकिंग में आऊँगा, बट आई एम रेडी टू एक्सप्लोर, ठीक है। और मैंने ऑनेस्ट वाला बोला कि आई एम रेडी टू एक्सप्लोर, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था कि आई वॉन्ट टू गो इन टू बैंकिंग ओनली, ठीक है। एंड ही वॉज लाइक कि मैंने जो भी दूसरे, मतलब उन्होंने 2 पहले ही इंटरव्यूअर लेके रखे थे, साइड करके रखे थे, सिलेक्ट करके रखे थे। उन्होंने बोला कि मैंने 2 पिछले जितने भी इंटरव्यू को किया है, अभी तक इंटरव्यू लिया, उन्होंने सबने ये बोला कि उनको बैंकिंग में आना था। एंड तब मेरे को जब उन्होंने आंसर बोला ना, तब मुझे लगा कि यार बचपन से किसको बैंकिंग में आना होता है। तो आई वाज लाइक कि कितना झूठ बोल रहे हैं वो लोग मेरे सामने ही। तो आई लाइक योर ऑनेस्टी, उन्होंने ऐसा बोला कि आई लाइक योर ऑनेस्टी, और मतलब दैट वाज समथिंग ऑन अ पॉजिटिव साइड कि यार मैंने सच बोला तो उनको अच्छा लगा ये सच सुन के कि भाई किसी को बैंकिंग में थोड़ी आना होता है बचपन से, ठीक है। तो वो उस हिसाब से आई गेस कि मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। टेक्निकली लाइक जो भी हमारा सीए करिकुलम होता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं थे। इनफैक्ट ही वाज आल्सो अ सीए, तो सीए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं थे। दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ डीबीएस बैंक इंटरव्यू। Got it. Fair. I think very exhaustive. Thanks for that granular answer as well. Isme from what I understand from the three of you is that it's very important to stay updated with what's happening in the economy. That is one. Second is that you really need to brush up very well on your articleship experience. जो भी काम किया है पूरा in and out पता होना चाहिए. And the third one is that मतलब आपको basically एकदम strong confident of course sound करना है, and you have to just ensure कि industrial training how it is going to benefit you and how you are going to add value to the organization. Like if you are able to prove these 3 pointers, then it'll be easier for you to get into industrial training is what I understand from your answers. Talking about stipend, everyone is now waiting till this moment just to understand कि okay stipends कितने होते हैं ये industrial trainee firms में. You mentioned that BCG में तो 1 lakh per month का stipend होता है, but maybe I wanted to understand कि firstly कौन से companies आते हैं और वो companies क्या क्या stipends देती है. So if you can take that and help us understand, that'll be helpful. Yes, so first of all BCG, I will go highest to lowest. So, not lowest as such, but let's start it highest. Yeah. So if you talk about BCG, it was 1 lakh, but
right now it is 1.5 lakhs per month. What are you saying? Seriously? Yes, 1.5 lakhs. My God. Okay. And if I'm not wrong, that is not tax deductible. There is no tax on that. No, there is tax There is, is there deducted. It Tax is is- a very painful thing when you join BCG and you get the message that an amount has been debited, which is not 1.5 lakhs, it is lesser. Debited, nahi, credited. Credited. Sorry, yeah, credited and yeah. So That's we actually did take it up with BCG that okay, and we actually being CA students, we actually gave them a snapshot of the provision that see इससे section 10 में इसका 10, Okay. 16. Oh. हाँ इसका exemption मिलना So चाहिए it's हमें. stipend is a scholarship. So, Ah. yeah, So scholarship exactly. is We went essay with full legal backing and everything, but But for that, they should not take deduction. If they are taking deduction, you are also taking. You are not also paying tax. Ah. Then it's so government's they loss. just completely denied the benefit. So it is totally tax deductible. But still, your tax amount is greater than the articleship stipend at even Big Four. So, Even the industrial training stipend. At India RF. Yeah, yes. go ahead. So BCG is 1.5 lakhs. Now JP Morgan has different profiles. In one particular investment banking profile, they pay 1.2 lakhs per month. Wow. ये same profile, like one of my friends Tushar, he was at 75,000 per month back in 2018. So is yeah, that that's the same profile? Achha, It was 1 lakh last year. Now 1.2 lakhs. okay, got it. Yeah. Then Apollo Global. So they are hiring different profiles like valuations and financial controllership and 6 different profiles. Stipend is 60,000. For all the 6 profiles? Yes. Okay. Then HUL 50,000. Marico, if I'm not wrong, 50,000 or 30,000. Then every other company like Morgan Stanley, Goldman Sachs, Amazon, Flipkart, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, everyone is hiring industrial trainees, and 50,000 or 30,000 to 50,000 is the range. Hmm. Even in equity research, Nuvama, Nomura, then in equity research and IB, then Edelweiss, right, okay. Then in private equity, Motilal Oswal Private Equity, India RF, Banyan Tree, and other industry side roles like even Cipla, Abbott, and there are many private companies as well. Yeah. So they pay 30,000 and they take industrial training. Yeah, I remember Aditya Birla Group में भी when Aditya I Birla, was there तभी कर 30,000. रहे थे 30,000 per अभी भी month was 30,000 the है. stipend, right? Yes. Even in fact Aditya Birla में even that there's a department CSBD where a lot of people want to get into corporate strategy and जी. business development. Yeah. तो वहाँ पे 30,000 per month. Yeah. And even now Aditya Birla Ventures where I was working at वहाँ पर भी like when I was there so they started hiring industrial trainees. वहाँ पर भी similar range like 30,000 per month. So I think 30 to 50 is the ballpark. Yes. And मेरे को लग रहा है lowest तो मैंने इसका सुना India RF का अभी 20,000 तो 20,000 से कम तो I don't think नहीं. कोई भी stipend होगा. And there is one more point. You mentioned Aditya Birla corporate strategy. I missed that. That is a very good profile. And even what I heard, there was an industrial trainee there, and he got a PPO for around 25 lakhs Yeah. kind of thing. So राइट हाँ वो होता ही है मतलब इट्स लाइक कि मोस्टली ऐसा होता है इंडस्ट्री में कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स का काम अगर बहुत अच्छा लग गया ना Yes. तो पीपीओ ही दे देंगे बिकॉज फॉर देम इट्स अ पेन हायरिंग लाइक अ क्वालिटी कैंडिडेट एंड इसको ऑलरेडी आता है इसने Exactly. पिछले 9 महीने से या 15 महीने से डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर उसने काम किया है Right. तो क्यों किसी नए को हायर करके उसको पूरा ट्रेन करे व्हेन वी हैव अ रेडीमेड लाइक an analyst or associate or a person who is ready for that role. Yes. So that's the thought process which is there in almost every company which yeah, is Right. so that's the reason many companies, mainly IBs, investment banking firms, they are hiring industrial trainees. right. I won't be surprised by the way. अगर आगे जाके मतलब I feel like it's my opinion again, but I'm a firm believer कि आगे जाके almost every company PE, VC, IB consulting will go for industrial trainees. I'll tell you one VC fund called Bloom Ventures, which is a very good VC fund, Yeah. right? They also started hiring industrial trainees, and I feel that बाकी VC funds भी जितने भी होंगे ना, everyone will hire because firstly like it's as good as hiring a CA because उनको knowledge तो almost है ही पूरा, Yes. and secondly it's like low cost resource for them. So if they're able to get them for 30,000 per month, it's a very good thing for them also because उनको एक like अच्छा cheap resource मिल रहा है, cheap as in subsidized I should say, and secondly for that person also the exposure which that person is getting in these companies is just immense. Right. Because उसको ब्लूम वेंचर्स या वीसी फंड में अगर एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस मिल रहा है तो बाद में उसको फिर अपॉर्चुनिटीज एट सेकोया, लाइटस्पीड, एक्सेल, Matrix. टाइगर ग्लोबल, मैट्रिक्स, सॉफ्ट बैंक ये सब तो ओपन हो जाएगी Right. बिकॉज उसका Right. एक्सपीरियंस है वहाँ पे. सो आई थिंक दिस इज वेरी अंडररेटेड कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को मतलब आई फील पर्सनली फील कि इसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए. इट्स अ वेरी अंडररेटेड टॉपिक एंड थिंग एंड पीपल शुड स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट Yes. फेज इज व्हाट आई फील. Right. So just to add, I have talked to many CA final rankers as well who have not done industrial training, and if I ask them, they just tell me one thing, one line: just go for industrial. Yeah. Just go for industrial.
but still I was considering study leaves and everything. But now with the new scheme, Correct. students Right. should try to get into good Definitely. industrial training firms. Right, I agree. Study leaves का तूने अभी टॉपिक निकाला है तो let's talk about the study leaves thing also, guys. Ankush, this is for you because you have given your exams in November 2023 and we're very confident you're going to get an all India rank in your CA finals In top five, as top well. three. Yeah, in top 5 actually. Don't talk about it. Inter top 5 था तो finals Touch wood. में भी top 5 उन्होंने यार touch wood की बोली है. So let's talk about your thing कि how did you manage your academics with your industrial training? कैसे planning किया, strategize कैसे किया, कितना टाइम academics को देना है, कितना टाइम industrial training को देना है, because this is a question which lot of people have Right. कि balance कैसे करें. Right. ये hectic बहुत होता है, like Right. as you guys mentioned. So Right. how did you think about that? या सो मैं पूरा एग्जॉस्टिव बताऊंगा इसके हाँ, बारे में. सो मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन किया. आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली थी. सो आई वाज वेरी अच्छा आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के पहले हाँ, क्लासेस. हाँ. He's always ahead. ये तो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल है यार. आर्टिकलशिप के पहले क्लासेस. yeah so my articleship joining date was 23rd March and I joined my classes on 8th March 2021. ओके कौन सा सब्जेक्ट ज्वाइन किया था सबसे पहले? नहीं, सो आई टुक ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन. अच्छा ओके ठीक है. सो आई जॉइंड दैट. सो उनके हिसाब से जो उनको Okay. करवाना हो वैसे करवा लेते वो लोग. सो आई वाज लाइक यार मेरे को है ना, आई वाज लाइक मैंने बोला जैसे आई वाज वेरी फैसिनेटेड फ्रॉम कोमल AR1. सो मुझे ऐसा था कि आई वांट टू गो इनटू इंडस्ट्रियल. I'll send this podcast link to her. हाँ इसका इसने इतना बार नाम लिया है उसको भेजता हूँ किसी. She's in London, right? Yeah, she's come back probably. Yeah, so I met also her. I also met her in the facilitation program. I also told her that I am very fascinated by your profile and what you achieved. So yeah, so मेरा ऐसा था कि I want to go into industrial training. So I will have to do my study. मतलब जो भी मेरा करना है मुझे स्टडी पहले बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी if I want to go get an rank on CA final. So I was like कि यार ठीक है. I मतलब मैंने वही बोला ना कि I didn't focused on my articleship. जो काम देता था जितना देता था उतना मैं कर लेता था and साइड में साइड लेक्चर्स चल रहा है आराम से. And I was like I know myself कि यार सेल्फ स्टडी से बहुत कुछ होता है, लेक्चर से कुछ भी नहीं होता. इट्स 0%. मतलब मैं I completely agree. Yeah. if I can say this, it's 0%. Yeah. Lectures are just meant for nothing. वो सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देते हैं आपको Yeah. कि भाई आपका लेक्चर्स हो गया. हाँ चलो लेक्चर कोई पूछे लेक्चर्स, हाँ भाई लेक्चर्स तो हो गया मेरा वैसा वाला. सो आई न्यू दैट. सो व्हाट आई डिड इन माय लेक्चर्स वाज कि सो द पैटर्न वाज कि वो लोग नोट्स लिखते थे एंड दे यूज टू मेक अस अंडरस्टैंड कि भाई नोट्स में उन्होंने क्या लिखा है वो बुक से कभी कभी पढ़ा देते थे. सो माय पॉइंट वाज कि मेरे को नोट्स तो लिखने कम से कम कि भाई बाद में काम आ जाएंगे. सो व्हाट आई यूज टू डू इज आई टुक अ PDF, I took a print of that and I started copying the notes and I was watching the lectures simultaneously. So they were teaching, I was just copying the notes in 3x. So they had a provision of doing the speed to 3x. So I just did 3x and मैं बस मतलब वो क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा. वो बस बोल रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है and I am just writing my notes. So that was my approach and through that I completed FR and maybe law in 6 months. First 6 months I completed that. 3x my पे देख God. के. हाँ. सही Yeah, I है. witnessed that. he watched lectures at 2.5x and Oh my he God. said it's very easy, you can understand. I took the earphones and I was like, what is he saying? I don't understand at all. I don't even understand a single word. Actually, I think that is one of the reasons he speaks so fast also. If Yes. you have noticed कि वो एकदम fast देता है तो जो भी देख रहा है इसका 0.5x इसका जब आएगा ना आप 0.5x कर लो, हमारा आएगा तब 1x कर लो. फर्स्ट मॉक टेस्ट जो मैंने खत्म करी वो जून में खत्म करी एंड देयर वाज लाइक कि 3 सब्जेक्ट थे मेरे जो मेरे बहुत वीक थे. मतलब ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू एवरीथिंग इन दोस 14 डेज जिसमें आपको है ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको हर दिन वर्किंग डे पे से आपको 2-3 घंटा मिलता है एंड जो सैटरडे संडे होते हैं उसमें आपको सिर्फ वो जो 8 आवर्स होता है बेसिकली. लेकिन आपके पास बहुत सारे दोस्त भी है, आपको बहुत सारे पार्टीज ये सब भी करनी है. मतलब यू कैन नॉट ऑब्वियसली नेग्लेक्ट एवरीथिंग. ठीक है. तो मेरा ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं था पढ़ाई के लिए. तो वैसा था मेरा. सो अब मेरे 3 सब्जेक्ट थे DT, IDT और FR जो मेरे बहुत अच्छे से नहीं हुए थे. तो मैंने वो 1 महीने में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ साथ वो अच्छे से किए. कैसे किया ये मैनेज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के हाँ. साथ साथ? सो दैट्स द पॉइंट कि यार दैट डिपेंड्स ऑन योर मैनेजर आई वुड से एंड ऑब्वियसली योर रोल कि आपका रोल कैसा है. इफ़ यू टॉक अबाउट BCG यू ऑब्वियसली हैव अ 10 आवर्स मिनिमम जो आपको बैठना ही है ऑफिस में जो भी आपको वर्क फ्रॉम दिया जाता है. 10 से ज़्यादा होता है. हाँ कि 10 से कितना? ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा. कितना कितना होता है? We call it an 70 to 80 hour work week. तो 70 to 80 hours work week and क्या 6 days working और 5 days. अच्छा 5 days only. 5 days working, but ठीक है weekend पे अगर कुछ आ गया तो you have to do it. So 70 hours over 5 days you're saying. So 14 hours a day. 14 hours a day. Is it? My God, ये तो So बहुत ही it's ज़्यादा है. मतलब again
they give the work to you, it's on you how you manage it. So if you don't work a lot on the weekdays, you'll have to, there's Got it. spillover for the weekend, तो तुम्हें weekend पे cover up करना ही पड़ेगा. तुम्हें काम खत्म करना है, वो तुम पे है कि तुम 5 दिन में खत्म करते हो या तुम नेक्स्ट वीक डिलीवर करना, तो देयर आर चांसेस मुझे वीकेंड पर भी काम करना पड़े, या कुछ मतलब अर्जेंट आ गया तो यू आर ऑब्वियसली रोप्ड इनटू वर्क फॉर इट. तो थोड़ा तुम्हें उसके लिए बैंडविड्थ रखनी पड़ती है अलग से, कि कभी ना कभी कुछ काम आ गया तो तुम्हें करना फिर पड़ेगा. डीबीएस बैंक में कितना था? हाँ, सो आई वाज लाइक कि अब मैं बैंक में था, ठीक है, तो वो मेरा बहुत प्लस पॉइंट था कि उनका फिक्स आवर्स रहता था, ठीक है, एंड मेरे को 9 to 6. 9 to 6, और मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ा लेक्चर्स का बोल के या फिर थोड़ा उसका बोल के मैं 9 to 5 होता था मेरा बेसिकली. एंड वो ऐसा होता था कि आपको लैपटॉप भी घर पे नहीं लेके आना, आप लैपटॉप भी वहाँ रख के आ सकते हो. एंड मंडे टू फ्राइडे कोई वर्किंग वीकेंड नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपको 9 to 5 था. ये मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट था इसके लिए कि भाई मेरे को इसकी वजह से ज़्यादा टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए. सो दैट्स हाउ आई मैनेज. मैंने थोड़ा बहुत उनको बताया भी कि यार रैंक के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और बहुत मतलब आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे ना दोनों मैनेजर्स थे वो सीए थे, एंड दे अंडरस्टूड मी. वो बहुत आइडियल मैनेजर्स टाइप ऑफ कैटेगरी मैनेजर्स थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीट थे, एंड दे अलाउड मी कि भाई तू वर्क फ्रॉम ले सकता है. मतलब आपको बेसिकली डिस्कशन करना है अपने मैनेजर्स के साथ कि दिस इज मैं अभी मेरी स्टडी लीव ऐसी, मतलब मेरा स्टडी पैटर्न ये है, आई एम एट दिस लेवल ऑफ स्टडी एंड मुझे इतना चाहिए होगा, या फिर आई एम एमिंग फॉर द रैंक, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा. सो दे वर लाइक कि ठीक है, यू कैन वर्क फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे फ्रॉम ऑफिस, एंड देन यू कैन डे थर्सडे ऑन फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम. वर्क फ्रॉम होम में बेसिकली आपको बहुत सारा टाइम बचता है. अगर आपको ऑफिस में कोई काम नहीं है तो आपको ऑफिस में बैठना है, यू कैन नॉट वॉच लेक्चर्स और यू कैन नॉट स्टडी. लेकिन अगर आपके पास घर पे हो और आपको कोई काम नहीं है तो यू कैन ऑब्वियसली स्टडी, ठीक है. और मेरा ऐसा होता था ना, माई प्रोफाइल इज लाइक कि आपको एक हफ्ते का काम पहले से ही पता है कि आपको एक हफ्ते में ये काम करना है. सो मैं अपना ऐसा करता था कि मैं आई वॉज एफिशिएंट कि मैंने ना 3 दिन में वो काम कर लेता था, एंड 2 दिन जो बचते थे वर्क फ्रॉम वाले उसमें मैं पढ़ाई कर लेता था अच्छे से. सो यू विल हैव टू मैनेज, यू विल हैव टू टॉक टू योर मैनेजर्स बेसिकली कि भाई अगर वो केयरिंग है, वो सपोर्टिव है, तो आपका पढ़ाई अच्छे से हो सकती है. So that was the way I used to manage my studies, and I was very fortunate I did that. Got it, fair. And इसमें फिर usually इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मतलब 10 to 12 hours is what I can assume कि Yes. उतना तो होता ही Yes, होगा yes, like yes. तो उसमें like how are you managing then, like for you कैसे होता है? Yeah, so my office timings are like 9:30 to 6:37. It's just 1.5 months, but yeah, majorly 9:30 to मतलब 10 घंटे 6:37. के आसपास होता है ये. Yeah. So like how's your routine then, मतलब कैसे So- पढ़ाई कैसे मैनेज होता है फिर? Yeah, so I wake up in the morning, get ready as soon as possible, and run to chase the 8:57 local train from Andheri, because that is the train in which you will get a seat to seat. हाँ. Then just going to Prabhadevi, 50 minutes, then whole day work, then again come back from office, then try to do your lectures. Okay. And on weekends, if you want to do self study, then you can. ये weekends off होते होगे? Yes, So weekends are Saturday off. Sunday is off. Unless there is something important that needs to be get done, then you need to work. Got it. And I assume like अभी तो trend हो गया पूरा like कि घर पे बैठे बैठे lectures देखने, right? I mean that हाँ. it's not possible to go to a classroom and study for Yes. like offline, right? Yeah, मतलब नहीं. there are people who go to offline classes like for many classes in Andheri, but for industrial training it is not possible because in articleship typically the office hours are from 11. Right. But in industrial training typically the companies start working from 9:30 or 10. Got Right. it. Fair. Yeah, because you're working in a corporate itself. Yeah, राइट. Perfect. एंड मेनी पीपल डोंट प्रेफर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वही मैं बोला 1 की स्पीड पे होता है जो भी क्लासेस होती है 3 घंटे की, एंड दैट यू कैन टेक लेक्चर्स वहाँ पे Less स्टॉक traveling है, time. तो आपका उतना आधा टाइम बच जाता है. इसीलिए ये ना एक भी हमारे जो बैच चल रही ना एक भी लेक्चर में नहीं आता है ये लाइव, एक में भी नहीं आया है अभी तक. लेजिट मैंने इसको बोला था कि देखो लाइव करना पड़ेगा सब कुछ अटेंड, ये बाद में रिकॉर्डिंग देखता है. मेरे को लग रहा है उसमें 3x का फीचर नहीं है अभी हमारे LMS में. मेरे को लग रहा है 2x पे तो 100% देखता ही होगा. नहीं, सो बेसिकली वही मैंने आपको बोला ना, ऑफिस होता है एंड देन दिस. अभी तो इसने बोला 9 से 6 होता है ऑफिस. अरे वो पहले की बात था, अब तो मैं कुछ बोल भी नहीं You are सकता ना caught. उनको, अब तो मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकता, मेरा स्टडी वेडी है, तो वो चलाते फिर ऑफिस एंड अच्छा, देन पेपर good प्रेजेंटेशन एंड ऑल. गुड एक्सक्यूज है, कवरिंग अप करना सीख गया ये. हां वेरी स्मार्ट. इसका हॉस्टल में कैसा है, लाइक तुम्हारा हॉस्टल के थोड़े फन एनवायरनमेंट्स बताओ ना, लाइक कि क्या कुछ मस्ती क्या किया है, सबसे वियर्ड चीज या सबसे तूफानी चीज क्या किया तुम लोगों ने हॉस्टल में? मैंने किया नहीं वो नहीं बोलूँगा, बट जो लोग करते हैं जो लोग करते हैं मेनली बर्थडेज पे. सो बर्थडे किसी का भी बर्थडे रहा उसको बाथरूम में लेके जाएंगे, मेनली MRV जहाँ पे कॉमन बाथरूम है, सो वहाँ लेके जाएंगे
एंड उस पर सब कुछ डालेंगे, सर्फ एक्सेल डालेंगे, विम बार डालेंगे। इसको तो सिर्फ ये तो- माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही आता है, सिर्फ एक्सेल तो क्या ही आता होगा। नहीं ये सब तो होते हैं, तो बहुत ये मिनिमम बता रहे हैं मेरे ख्याल से ये। हाँ। उसके बाद बहुत उसमें बहुत सारा आपको बॉम्बिंग्स भी मिलती है, अच्छे से, बहुत अच्छे से मारते हैं आपको, अच्छे से, मतलब मैं नहीं करता ऑब्वियसली ये सब, लेकिन जो लोग करते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। एक हमारा फाइन हुआ था, 1 लाख के अराउंड फाइन गया था My God. पूरे फ्लोर पे, क्योंकि फ्लोर पे उन्होंने दे यूज अ फायर हॉर्स, जो हम फायर को एक्सटिंग्विशर जो होता है वो पूरा यूज किया था किसी बर्थडे पे। उन्होंने 12 बजे रात को, कैमरा वैमरा सब लगे हुए, सबको पता है कैमरा वैमरा, लेकिन दे जस्ट मेस्ड अप द फ्लोर। वहाँ पे 1 लाख का फाइन हुआ था सबको, 2-3 जनों को रेस्टिकेट भी किया था। रेस्टिकेट तो हाँ। सस्पेंड नहीं था ये? हाँ नहीं, मतलब अभी आ ही नहीं सकते हो हॉस्टल Right. में। माय गॉड, मेरे एक फ्रेंड को सस्पेंड किया था, वही शुभम सिंगल जो हाँ, है लॉ yes, के yes. फैकल्टी, हाँ। तो उसको सस्पेंड किया गया हाँ, था मैं एंड सुना ही। उसको 5 दिन 1 हफ्ता सस्पेंड किया था। तो 4 Reason? लोग थे, तो यही बर्थडेज मना रहे थे काफ़ी धूमधाम से। मैं भी था उसमें इन्वॉल्व, बट मैं तो थोड़ा पतली गली से चला गया पीछे से। एंड हम लोग कितने 20 लोग थे वहाँ पे वही रूम में। एंड अभी तो मैं बाहर भी आ गया, तो मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल भी सकता हूँ। तुम लोग तो डर डर के बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे ये वीडियो सर्कुलेट होने वाले हैं हॉस्टल में। बट हमारे टाइम ऐसा था कि 20 लोग थे, एक फ्रेंड का बर्थडे था, उसको पूरा ऐसे ही जैसे ये बता रहा है ना, लाइक पूरा उसको बॉम्बिंग वगैरह बहुत जोर से मारा वगैरह। एंड प्लीज बहुत लाउड म्यूजिक, और सब लोग गा रहे, चिल्ला रहे, कुछ भी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, गिटार वगैरह लेके मार रहे थे, गिटार से वगैरह, तो एकदम ऐसे बहुत ही मार रहे थे। तो उसके बाद पता चल गया वार्डन को, एंड सब चले गए फिर वहाँ से। एंड देन वो गार्ड आया था, तो गार्ड ने वीडियो खींच लिया था एकदम छुपके से। तो गार्ड ने पूरा वीडियो खींच लिया, सबका चेहरा उसमें कैप्चर हो गया था। एंड हमको पता चला कि मोबाइल दिख रहा है वहाँ से, एंड हमको बाद में चला कि अरे ये तो वीडियो खींच लिया। एंड देन वो दैट वीडियो वाज सर्कुलेटेड, एंड 4 पीपल इंक्लूडिंग शुभम हु वाज देयर, तो उनको सस्पेंड किया था 1 हफ्ते के लिए। सो दे हैड टू स्टे विद देयर फ्रेंड्स, मैनेज देयर फूड। इनफैक्ट पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उन्होंने क्लासेस ज्वाइन की थी विच वर इन हॉस्टल, उनको उसके लिए भी नहीं अलाउड था अंदर आने के लिए, अरे। तो उनके लेक्चर्स भी मिस हो गए। एंड ये ऑफलाइन क्लासेस थे नीचे जो आरबीजी हॉस्टल में होते, तो उनको तो उसके लिए भी नहीं आने दे रहे थे, बोल रहे थे नहीं आपको इधर देखना ही नहीं, 7 दिन आप आ ही नहीं सकते हो। तो उनके लेक्चर्स भी मिस हो गए थे। तो ये हमारे साथ लगे, हमारे टाइम हमने ऐसे मस्ती किया था। बट अभी तो आई थिंक और तुम लोग मस्ती करते होगे, वो बता नहीं रहे हो अभी। बट आई थिंक that's the advantage, and I think the other side of staying in a hostel, like you Definitely, get to definitely. meet a lot of new people. Right. जुगाड़ू बन जाते हो हॉस्टल में जाने के बाद। न्यू पीपल, न्यू पर्सपेक्टिव्स, न्यू प्रोफाइल्स। Yeah. Means in RVG there are people from every profile for articleship, industrial training, everything from IB to PE to consulting, everything. मतलब आई थिंक दैट हॉस्टल राइट, अभी कितने लोग हैं? हमारे टाइम 500 थे, अभी कितने? 600 700। 700 In ओके। अभी आई boys. थिंक वो बड़ा हो गया है ना। हाँ बॉयज वही बोला। तो उसमें आई थिंक हम लोग तो बहुत ज़्यादा ही इन द सेंस इट वाज अ नेटवर्किंग हब फॉर अस। Right. एंड यू मेंशन राइट, तो बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग डाइवर्स प्रोफाइल्स के थे, हमने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए थे। हाँ। तो ऐसे हर रात को ऐसे 10-15 लोग मिलके डिस्कस करते थे कोई टॉपिक पे, इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स। उसके बाद वीकेंड्स पे हम हमारे फ्रेंड्स के रूम में जाके जैमिंग करना, गिटार Yes, बजाना, yes, yes, वो सब होता One था। night. आई थिंक लाइक आई फील वेरी नॉस्टैल्जिक राइट नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दोज डेज। बट लाइक ट्रूली जो भी अपॉर्चुनिटीज मेरे को भी मिली है, like it's because of those 3 years and the network that I've been able to build in that hostel itself. Right. तो मेरे को तो बहुत नॉस्टैल्जिया होता है जब भी मैं बात करता हूँ उसके बारे में। Yeah. And when you started, when I talked that I am an introvert guy, you guys like नहीं ऐसा नहीं हो सकता, so वो यहीं से आया है। I was very introvert, लेकिन फिर यहाँ पे लोगों को देखा, Correct. लोगों से बात करी, so that's how you build your personality. करेक्ट, इसमें वो आगाज भी होता है ना। Yes, तो yes, yes. तभी मैं होस्ट करता था आगाज, लाइक आई होस्टेड वन आगाज, एंड तभी वो पूरा स्टेज पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज Mr. RVG. रिमूवल, हाँ मिस्टर Yeah. आरवीजी के लिए भी मैंने पार्टिसिपेट Even I किया was था। contender for Mr. RVG. हाँ, मिला नहीं, अच्छा। but I was a contender. अच्छा, तो लॉस हो गया आरवीजी का, तेरे को नहीं दिया मिस्टर आरवीजी अभी, There are ठीक है। people, मतलब pro people are there. अच्छा। So, Like you get to know कि भाई आपने कुछ किया है तो लोगों ने बहुत कुछ किया है। हाँ। करेक्ट। हमारे The टाइम best तो part. ऐसे नेशनल लेवल वायलिनिस्ट, फिर AIR1 मतलब गौरव सरावगी जो गौरव IPC का था, वो तो रोज सुबह 5 बजे लाइब्रेरी में आके पढ़ता था। उसको देख के मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलता था, मैं खुद लाइब्रेरी में जाता था। तो आई थिंक लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोफाइल्स, डाइवर्स प्रोफाइल्स, नॉट ओनली CA रिलेटेड बट ऑल्सो लाइक समथिंग दे आर डूइंग गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर। yes, एक बंदा है जो कोडिंग करके पूरा ऐप बना दिया था, RVG का ऐप। सो उसने वो पूरा ऐप, उसको तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, बिकॉज उसने ही मेड एन ऐप जहाँ पर सारे नोटिसेस, सारे So we are मतलब using जो that भी app. हाँ, we वो are भी using करते हैं, that वो ऐप बना दिया था। तो ही वाज द वन हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन दैट। Okay. तो काफी आई थिंक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बट आई थिंक तन्वी बोर हो रही है इसमें, तो अपन we'll ये change अच्छा the लग रहा है topic. सुनने में, because I have peers from like RVG. RVG, BCG, तो ये थोड़ा बहुत मैंने हाँ। सुना हुआ है ये सब जो बर्थडे पे होता है ये। Right. Cool guys, I think it was a lot of fun talking to you. One last question which I wanted to ask, which is also a common question asked by a lot of folks.
Do you think you should risk your rank in your CA finals for industrial training? What are your thoughts? किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? What should be the ultimate priority? बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर रैंक नहीं आया और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर ली तो चल जाएगा, बेटर होगा. But what are your thoughts on that? Subjective point, depends case to case, but I will always prefer rank above industrial training. First of all, if you are getting a rank along with industrial training, nothing like that. Yeah. That's the best case. Which is what all three of you are going to get, I think. So that is one rank. Why? Like, can you justify? Yeah, so basically if you get a rank, you will get all the opportunities, even more than what you are getting from industrial training. Got So it. even McKinsey or Bain can pick you up after getting a CA final rank, even if you are not done industrial training. But if you do industrial training and don't get a rank, then even Bain will not shortlist you. So that is the very practical thing. Second thing, but if you are getting a profile which is very rare to enter into, or it's an industry which is having high entry barriers, then definitely you should go for that profile. But then you make sure you will get a rank at least in the last 20s, but you should try to get a rank. And again, rank is a one time thing. You will get a rank and it will be with you for your entire life. Right. So Right. that's why. Yeah, I think I agree with that. And even having a rank will give an advantage if you plan to go for MBA in IIMs or maybe anywhere in top tier 1 colleges. Right. But if you have done industrial training and don't get a rank, then it might not have any value, because industrial training experience is not counted for calculating the score of MBA. Oh, okay. Yeah, it will give you an advantage over others informally during interviews, but not while calculating that score based on the weighted average of CAT score and everything. So Got it. Interesting insights. Anything you guys want to add here? No, I have a similar view कि भाई in fact मतलब if I see Akshat Goyal, so he was an AR1 in CA Inter, AR2 in CA final. He was from an articleship of Kalani, which is a top tier firm in Jaipur, and he got into BCG. So I was like कि यार अगर rank आ रही है ना, you have many opportunities. लेकिन अगर आपने industrial training में करी है, and if you fail in one attempt or if you defer your attempt, तो वो थोड़ा बहुत preference कम हो जाता है, क्योंकि बेसिकली यू सेट कि भाई बहुत सारी कंपनीज का क्राइटेरिया ही रैंक होता है. मतलब अगर आपकी रैंक है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, भले आपने कुछ भी किया हो फिर जीवन में. तो इवन आई मतलब मैं भी अगर कोई मेरे से पूछता भी कि शुड आई गो इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इज मैं जो उनसे पूछता हूँ स्टडीज़ के बारे में कि वेयर आर योर स्टडीज़. अगर आपकी स्टडीज़ अच्छी है, इफ़ यू थिंक कि आप क्लियर कर जाओगे पहले ही टाइम में, तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाओ. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा अटेम्प्ट लगेगा या फिर मेरे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वजह से ऐसा कुछ हो जाएगा, सो रहने दो. अब जैसे इनका BCG है, सो अगर मेरे से कोई बोले कि मैं BCG में सिलेक्ट हो गई हूँ एंड देन आई एम थिंकिंग ऑफ स्टडीज़, तो मैं बोलूँगा नो यूज़. फिर आप जाओ BCG में. अगर आपकी स्टडीज़ भी नहीं हो, यू कैन डेफर योर अटेम्प्ट, दैट विल बी वर्थ इट. लेकिन अगर आप दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल कि भाई अगर आपकी प्रोफाइल ही वैसी है जिसके लिए आप शिफ्ट भी कर रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है. Yeah, makes sense. No, I think this is also a very interesting point. मतलब defer करना attempt is not as bad as it sounds. मतलब Yes. लोग बहुत डरते हैं, बोलते हैं कि यार defer कर दिया तो यार shit 6 महीने waste हो जाएंगे. No. But I think if you're getting that industrial training experience of let's say JP Morgan or BCG or these companies, and then तुम लोग defer करके भी rank लाके आ जाओ, तो then that's nothing like it. I feel like this is like one of the best moments, and that's going to be a dream profile also. Right. Yeah, and it's not that a rank along with industrial training cannot happen. Like I've seen my seniors in BCG, they just had 4 months of study leave, and in that they've pulled off a rank in like top 10. So it's not that it's not doable. You just have to plan properly and know your strengths and weaknesses and play on that. So Right. it's possible. It's not that Right. it's one at the cost of another. Right, makes sense. Cool, perfect. I think this was the last question from my side. It was lovely talking to the three of you. Thank you so much for taking out time. One last piece of advice for all the viewers who are watching this. yeah, so for those who are under the new scheme, you should definitely try to go for industrial training in some good profiles. And what I feel is that more and more companies will come to get industrial trainees who are not coming right now, because the new scheme student will be in the company for complete 12 months without any pause or break. So that will be an added advantage for that company as well. So definitely you should try, but just what we mentioned in the last point, rank is the first priority, or clearing the CA final exam in the first attempt is the first priority. Yeah. You can't just risk that because of industrial training. Perfect. Yeah, on the lines of what you said, a lot of companies will come. I'd say go for profiles that are sort of very picky in hiring. That's where you will get an edge. Definitely go for industrial training, but see where you are sort of less in number. Say very little CA industrial trainees hire. That will really catapult your career to a great extent. Again, manage your studies well. Get a rank obviously, because if and also first
study enough that you clear. Because Yeah. if you're not a CA, there is nothing else that will happen. So study enough, get a rank, that will be amazing. And also learn as much as you can, because Because once a person's learning attitude ends, his old age starts to begin. Exactly, right, exactly. right. Yeah. एंड जस्ट टू ऐड ऑन इवन इफ यू डोंट वांट टू गेट इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मतलब जब स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है मेरे को इंडस्ट्रियल में जाना ही नहीं है, मतलब उनको कुछ पता भी नहीं है क्या होता है, लेकिन उनको जाना नहीं है. तो आई एम लाइक कि भाई अगर आपको जाना भी नहीं है, आपको जाना भी है, स्टडी वेल, ठीक है, क्योंकि दैट्स द बिगेस्ट रिग्रेट जो मैं ना किसी भी मतलब यस्टरडे आई टॉकिंग टू वन गर्ल नेटकॉन में, शी वाज लाइक शी हैड अ वेरी गुड प्रोफाइल, लेकिन वो क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी स्टडीज़ पूरी नहीं हुई अच्छे से. अगर वो गई तो उनको डेफर करना पड़ेगा विच शी वॉज नॉट रेडी फॉर. सो मैं वो सबको यही एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है नहीं जाना है, लेकिन आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से शुरू रखो. आपको उस सिर्फ वो फैक्टर की वजह से आप इंडस्ट्री में ना जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दैट्स द केस कि आपको स्टडीज़ बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी शुरू से, भले आपको जाना है नहीं जाना है, क्या पता आपका माइंड चेंज हो जाए, यू वांट टू गो इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आपको पता चले अपने स्टडी नहीं करी है, फिर इसलिए नहीं जा पा रहे. सो दैट्स द एडवाइस व्हिच आई वांट टू गिव. One thing I'd like to add, I think the study aspect can be managed, because speaking from personal experience, I was also lagging on that front. But along with industrial training, I tried establishing a little boundaries, and from here and there, take out time, maybe meet your friends for an hour less. But then you can easily manage. It is doable. So, don't let studies be a hindrance for Yeah. your idea of going to industrial training. So Yeah. Cool, got it. Thanks a lot, guys. Super helpful, super insightful for me also as an individual for my startup ideas and कौन से courses मैं launch कर सकता हूँ कहाँ पे, कौन से time period में. Market gap कहाँ पे है. Market gap कहाँ पे है. But yeah, thank you so much for that, and it was Thank you. lovely having talking us to you. here. Yeah. One last question that we would like to ask you. मतलब अंकुश ने तो एग्जाम दे दी है, हमारी अभी एग्जाम्स है, एंड योर प्रोफाइल इज जस्ट अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, बट इफ यू टिपिकली टॉक अबाउट CA एग्जाम्स, सो व्हाट विल यू एडवाइस? One pointer that you would give. One more pointers. In the interest of time, I think one is possible. You have to catch your train. You have to go back to Nashik. Yeah, We can Panchwati sit train here है. all day. I think मतलब I don't think I am at that stage where I can advise super smart people like you. But one piece of advice which I'd like to give both of you who are going to give your exams, right? I think like separately to the each one of you, because I think she's on study leave right now, Yes. and you are going to go on study leave. So जो भी study leave का time होगा ना, I feel that is the best time in order to give the maximum effort. I feel that कि study leave के पहले तुमने जितनी भी पढ़ाई की है, that is phase 1. स्टडी लीव में जितनी पढ़ाई करोगे दैट इज़ फेज़ 2. एंड फेज़ 2 में आपको ये इंश्योर करना है कि इफेक्टिव स्टडिंग एंड जस्ट 100% फोकस करना है, एंड देयर शुडंट बी एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. यू मेंशन दैट डोंट लेट स्टडी बी अ हिंड्रेंस फॉर लेट्स से अदर एक्टिविटीज़ एंड ऑल, बट इन दैट लीव पीरियड आई वुड रिकमेंड कि वो टाइम पे तो प्रायोरिटी शुड ओनली बी स्टडी. दैट्स इट. 3.5-4 मंथ्स जो भी लास्ट के हो गए. एंड ट्रस्ट मी, I'll tell you by my personal experience कि मैंने भी कोचिंग क्लासेस किए थे, बट व्हेन आई वेंट टू स्टडी लीव आई वाज एंटायरली ब्लैंक. मतलब 2-2.5 साल पहले कॉस्टिंग SFM पढ़ा है, वो कुछ नहीं याद होने वाला है. तो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच एंड बी प्रिपेयर्ड कि सब लोगों का यही सिचुएशन है. इट्स नॉट कि यू आर आउट ऑफ द बॉक्स और एनी वन एल्स हु इज गेटिंग अ रैंक इज आउट ऑफ द बॉक्स. इट्स जस्ट दैट लास्ट के 4 महीने कौन कितना फोकस था, कंसिस्टेंट था, पेशेंट था, and sincere tha in their approach, that is going to matter a lot. So for both of you, I think you guys are absolutely going to do well in your lives, no doubt about that. But just in the study leave period, try to prioritize studies first, and then जितने भी extra curricular activities या hobbies है उसको थोड़ा sideline करो. Hobbies तो of course pursue करो, at least for 15 minutes, 20 minutes, so that it'll keep you refreshing. I did that mistake of not pursuing my hobbies during my leave period. But just have faith in yourself and just be consistent, be patient. It's a matter of 4.5 months. And once these 4.5 months are gone, you are set for your entire life. Today I don't have to study anything. Literally मतलब हो गया, अभी CA हो गया, CFA हो गया, ACC हो गया, अभी पढ़ाई हो गई है. I can do whatever I want, and I'm doing it very comfortably also, and without any stress, without any tension. So ये life सबको मिलेगी. मतलब it's just that कि वो hustle grind होगा ना, वो एक बार सबको go through करना ही है. So that's my only piece of advice. Theoretical subject wise or maybe strategy wise is like कि ICI modules पे focus करना. That's the only piece of advice I can give. मतलब ICI modules are Bible according to me, nothing else. And बस मैं तो यही like motivation quote तो मैं यही use करता हूँ कि if you don't sacrifice for what you want, then what you want becomes the sacrifice. So it's like जो भी sacrifices हो गए उसको complain crib मत करो. Consider it that they are going to be worth it on the results day. जब वो pink mark sheet पे 2 words pass के आते, I think that moment is going to be extremely out of the box, and it cannot be expressed. It can only be felt, in my opinion. So those are the days where you are waiting for, and इसका तो अभी आ ही जाएगा एक महीने में, and तुम्हारा भी I think 6 months, 12 months down the line.
16 Jan 2020 was my results day. That was the first day when I saw my dad into tears, and that feeling of happiness, I think that is something which cannot be expressed at all. So that's the only piece of advice. That was a great piece of advice. Thank you so much, Kushal. Cool. Thank you so much, guys, for coming here all the way. And Prasanna, special thanks to you. You have traveled all the way from Nasik to Bombay for this podcast. It was completely my pleasure. Yeah, but means a lot, and this was super insightful as well. Wish you all the best for your future endeavors, and can't wait to see you successful chartered accountants very soon and ruling the entire Indian economy very soon as well. Thank you for Thank having you for us. having Thank you so much, Thank you so Kushal. much. Thank you so much, everyone, for watching. Thanks, Thank thanks, you. guys.